So SNGT means Shri Nasik Goods Transport Company Private Limited, and this company was started in 1991. And today we have presence in Maharashtra and Gujarat, and we are serving 85 locations. And we have team size of about 650 people working with us, 650 plus people working with us, and we have 256 fleets, and we are serving almost I would say 800 to 1000 delivery and pickup points. And this year only, like as a new year just begin, we have also increased the two state services. We have expanded to Rajasthan and Delhi. Great. Thank you, sir. Thank you. So this is about all about SNGT, and we are more into surface logistics. Okay, so like, can you please explain it to our audience? What is it? Yeah, so surface logistics mean we are into road transport, and we have all type of vehicle. फॉर एग्जांपल अगर जो आपको एक छोटा सा पार्सल भी आपको कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, आई कैन डू दैट. आप मेरे को 100 टन्स भी देंगे तो आई कैन डू दैट. सो वी हैव ऑल टाइप ऑफ व्हीकल. सो ट्रकों में काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है उसकी पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से. जैसे अगर जो कमर्शियल व्हीकल की बात करूँ तो सबसे छोटी गाड़ी होती है छोटा हाथी, वी हैव दैट. उसके ऊपर आती है बोलेरो पिकअप, वी हैव दैट. एंड उसके बाद जो बड़ी से बड़ी ट्रकें आती है, ट्रेलर होता है. बाद में जिसको हैवी कमर्शियल व्हीकल HCVs होती है, 16 टन, 24 टन, 32 टन, 40 टन्स. तो वी हैव ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स और हम सब तरीके की सर्विस केटर करते हैं इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. Okay. So right now you just said 650 plus people. या So I've heard that your father and his brother started with 650 rupees या and now being the chairman of 650 plus employees in a company. या सो How does it feel? obviously it's a obviously like it's a proud feeling that your family has achieved so much. And definitely I think I'm really blessed to have such a wonderful family, because along with my father, my uncles are also like a role model to me, like a father model to me. So we have a joint family. So SNGT is a joint family run business. तो ऑब्वियसली वो प्राइड वाला फीलिंग तो होता ही है कि लाइक इतने सारे गाइड है आपके साथ में, इतने सारा सपोर्ट है. सो आपको इतना सारा विजडम भी मिलता है, लाइक पापा का नॉलेज, अंकल्स का नॉलेज, एंड अलॉन्ग विथ लाइक माई 4 uncles एंड माई फादर, आई हैव 4 other brothers. सो पापा ये लोग 5 है एंड वी आर 5. So the people call us Pach Pandavas, like young Pach Pandavas. Yeah. Nice. So now coming back to the start of SNGT, I would say 650 से 650 कैसे पहुँचे. So my father was initially like when he started his journey in the industry, I would say he was a truck driver. And before that also, before becoming a truck driver, I think he must be around 15 के age में he started loading at Kalyan Depot. So he was from Kutch. So at the age of 12 he came to Bombay. He used to stay in Kalyan, and then he started his journey over there, जहाँ पे ट्रक रेलवे यार्ड होता है वहाँ पे started loading and unloading. देन गराज पे काम किया, गराज में ट्रकों को ग्रीसिंग करते थे. एंड देन ही बिकम अ ट्रक ड्राइवर, एंड with a small experience of truck driving, he became a manager in the Trimurti Transport Company. And Trimurti mein he did a service for 13 years. And after 13 years, along with his brother Mahesh Katira, Bhagwan Katira, Jagdish Katira, Lalit Katira, and then they decided to start a company, Shri Nasik Goods Transport Company. This is how the name was derived. So हमारा जो फर्स्ट ब्रांच, जो फर्स्ट जर्नी था, वॉज मुंबई टू नासिक. एंड तभी ये नाम डिसाइड किया गया था कि श्री नासिक गुड्स. एंड दैट टाइम दे हैड एस्पिरेशंस ओनली लिमिटेड टिल नासिक. सो उनका गोल यही था कि बॉम्बे और नासिक को ही सर्व करना है. एंड विद गॉड्स ग्रेस, विद टाइम, स्लोली वी स्टार्टेड एक्सपांडिंग, एंड वी बिकेम पीपल्स ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे लोगों ने हमको पसंद किया, हमारी सर्विसेज को पसंद किया. एंड आई रिमेंबर माई फादर ऑलवेज टेल मी दैट ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसा कुछ क्रिएट करो जो मार्केट में कोई भी नहीं दे रहा है, एंड ऑलवेज गिव योर कस्टमर अ डिलाइट सर्विस. एक डिलाइट सर्विस ऐसा होता है कि जहाँ पे इट्स अ गेम चेंजर, आई वुड से. आप कभी भी कंपटीशन में मत उतरो, रेट्स को लेके compete मत करो, बट बी अ डिलाइट सर्वर, जहाँ पे कस्टमर आपके साथ बात करके, आपके साथ काम करके, ही शुड फील डिलाइट. सो आई थिंक दैट इज़ द USP of SNGT. वी ऑलवेज प्रोवाइड अ डिलाइट सर्विस, एंड दिस इज हाउ द कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग. एंड we started like right people, and the company had a vision, like कि एक clear vision था. तो उसके हिसाब से लोग साथ साथ में जुड़ते गए, एंड वो हिसाब से the journey started. And one more thing I would like to say about my uncles also. So as I told you that my father was truck driver, he had done loading. Then my second uncle Mahesh Katira, he was electrician in Kutch. So at I think after his schooling, so uncle का schooling boarding में हुआ था. And see, they all the 5 brothers stayed away from the family. मतलब I think from the age of 10
8 to 10 years वो लोग ने घर छोड़ दिया और वो लोग ने मतलब एक टफ टाइम देखा था. मतलब आई थिंक एक 10 साल का बच्चा घर छोड़ के चला गया है एंड देन ही इज़ लाइक फेसिंग द रियल वर्ल्ड. सो ऑल द 5 brothers have faced similar like challenges in life. तो माई सेकेंड अंकल वॉज अ इलेक्ट्रिशियन. तो वो इलेक्ट्रिक का काम करते थे. आई डू रिमेंबर ही स्टोरीज. सो ही वॉज मास्टरी इन स्टीलिंग द स्ट्रीट लाइट्स इन द कच्छ. सो वो क्या करते थे, कच्छ में जो स्ट्रीट लाइट होता था उसका कनेक्शन लेके के लोगों के घर में जोड़ देते थे. गेट फ्री लाइट. या सो ये सब 40 साल पुरानी स्टोरी है जहाँ पे आई थिंक वो टाइम पे लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी. देयर वाज सो मच पॉवर्टी. सो ये सब करते थे. एंड ही ऑल्सो यूज टू डू अ पेंटिंग जॉब, लोगों के घर में जाके पेंट करना, डू दैट. एंड उसके बाद मैं जो 3rd नंबर का अंकल जगदीश कतीरा जी है, सो ही केम टू भिवंडी, ही ऑल्सो केम टू नासिक. एंड वहाँ पे जो आपके यहाँ पे पिपलगांव बसवंत एरिया है, वहाँ पे कांदे का जो होता है, ऑनियन का जो वखार बोलते हैं, जो ऑनियन फार्मिंग होता है वहाँ पे, जो स्टोरेज होता है, तो वहाँ पे ही यूज टू स्टिच गनी बैग्स. एंड बाद में भिवंडी में शिफ्ट हो गए तो जो गोनी बोलते हैं गनी बैग्स, टू स्टिच दैट, वो बनाते थे खुद के हाथ से, उसको स्टिच करते थे. एंड देन माई 4th अंकल भगवान कतीरा, ही वॉज अ फार्मर. तो वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, गांव में ही रहते थे, वहीं पे लाइक टू वर्क ओवर देयर. एंड माई द यंगेस्ट चाचू, जो यंगेस्ट मैं बोलता हूँ बिकॉज आई गेट अ फीलिंग ऑफ अ ब्रदरली फीलिंग विद हिम. सो हिज नेम इज़ ललित कतीरा. एंड ही यूज टू सेल लाइक गुटखा, तंबाकू एंड सेल ऑन साइकिल. मतलब ऐसा कोई शॉप वॉप नहीं था. तो साइकिल पे जो फेरी वाले घूमते हैं, जो हम लोग देखते हैं काफ़ी टाइम, जो चाय बेचते हैं साइकिल पे वो लगा के, उनके पास जो थर्मोस होता है, बिग थर्मोस, तो सेम वर्क यूज टू डू. लाइक बॉम्बे में यहाँ वहाँ ट्रैवल करते थे. एंड हर नुक्कड़ पे जाके कोई भी दिख गया तो लाइक चलती हुई दुकान लेके चलते थे. तो रास्ते में पान, बीड़ी, तंबाकू, चाय वो करते थे. एंड दिस इज़ हाउ द 5 brothers लाइक दे हैव सीन द हार्डशिप इन द लाइफ. एंड देन माई फादर केम अप विथ एन आइडिया अलॉन्ग विथ हिज ब्रदर्स के कुछ करना है लाइफ में. एंड वो समय भी बहुत बुरा था, पैसे नहीं थे, काफ़ी तकलीफ़ें थी. देन दे ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट द सिस्टम मैरिड. तो ये सब चैलेंजेस को लेके एंड देन दे डिसाइडेड कि कुछ करना पड़ेगा, लाइक समथिंग दे हैव टू डू फॉर द स्टमक, आई वुड से. पेट चलाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बिकॉज फैमिली इज़ बिग. एंड देन दे केम अप विद SNGT. एंड फिर SNGT ऐसे स्टार्ट हुई. 5 भाई मिलके इन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, मेहनत की, और लाइफ के जो लेसन सीखे वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए. और फिर जर्नी कंटिन्यू होते होते SNGT आज यहाँ तक पहुँच पाई. जो हमने जैसे 650 पीपल बोला, सो वी हैव टीम ऑफ 650 पीपल. इन दैट वी हैव ऑलमोस्ट आई वुड से 260 प्लस ट्रक ड्राइवर्स. बाद में हमारे पास जो टीम है वो हमारे पास 85 लोकेशंस है. तो उसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी जगह पे डबल स्टाफ, ट्रिपल स्टाफ है. एंड आई वुड से ये 650 रुपीज़ से 650 पीपल का जर्नी किस तरीके से पॉसिबल हो पाया और आगे भी किसके लिए पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज सी ऑल यू नीड इज़ विजन. आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए. सी बिकॉज आप कहाँ पे भी देखेंगे, अगर जो आपकी टीम आपके साथ कोई भी, अगर जो मैं आप एक स्टार्टअप भी होता है, आप कभी भी देखेंगे जब राइट लीडर होता है तो कंपनी एकदम स्पीड में ग्रो करती है. मे बी 10x 20x एक स्पीड आ जाती है. सो स्पीड कब आती है, जब आपके पास विजन हो, आपके पास क्लैरिटी हो, और आपके पास आपके लोगों के लिए क्लैरिटी हो. सो आई थिंक माई फादर ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि कंपनी में क्या करना है, कंपनी में जब लोग जुड़ेंगे उनके लिए क्या है, और कस्टमर्स के लिए क्या है. सो दे हैड वेरी वेरी क्लियर विजन कि कस्टमर्स को डिलाइट सर्विस देना है, हमारे साथ जो भी जुड़े उसको भी ग्रो करना है हमारे साथ में. सो जैसे कि टिल टुडे वी हैव जैसे जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, सो वी हैव ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ मोर देन 250 ट्रक ड्राइवर्स टू ट्रक मालक. सो हमारे सैयद भाई करके एक ड्राइवर है जो अभी भी है, उनके पास गोटी में शोरूम है जो 3 माले का इलेक्ट्रॉनिक्स का है. आप बिलीव नहीं करोगे, वो अर्टिगा में आते हैं हमारे पास. ही ड्राइव्स अ ट्रक. ओके, वो अर्टिगा में आता है. मैं खुद भी, मेरे पास भी अर्टिगा है. सो मेरे पास भी अर्टिगा है, उसके पास भी अर्टिगा है. बट सो ऑब्वियसली लाइक यू अभी मेरे को जब नया मैं बिजनेस में आया था, आई ऑलवेज हैव दिस क्वेश्चन कि यार ये आदमी के पास शोरूम है, इसके पास अर्टिगा है, बाद में एक वाकचोरी करके उनके पास इनोवा है, एंड उनके पास बीच में BMW 3 सीरीज़ भी थी. तो यूज्ड टू गिव इट फॉर अ रेंट ऑल्सो आउटसाइड. तो मैं हमेशा वंडर करता था लाइक कि ये लोग के पास पैसा है, सब कुछ, ये लोग ट्रक क्यों चला रहे हैं, या तो कुछ फिश ही है. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन के सैयद भाई को मैंने पूछा
कि सैयद चाचा आप तो अर्टिगा में आते हो, आपको ड्राइवर का सैलरी परवड़ता कैसे, आप तो यहाँ पे आते हो, लाइक आपको क्यूरियोसिटी होता है कि कुछ चीज़ें देखो, क्योंकि बिकॉज ड्राइवर ऐसा जॉब होता है कि लोग मजबूरी में करते हैं. नोबडी वांट्स टू बिकम अ ट्रक ड्राइवर, बट हियर यू आर विलिंगली बिकमिंग अ ट्रक ड्राइवर, यू कमिंग ऑन ए ड्यूटी एंड यू आर सर्विंग लाइक ये आपकी कंपनी है. तब सैयद भाई गिव मी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आंसर, ये लाइक कि ये कंपनी किसका है. तो ऑब्वियसली लाइक ऐसा मन में आता है कि मेरे मेरे फादर का है, लाइक हमारा कंपनी है. नहीं, ये कंपनी मेरा है, लाइक ये कंपनी हमने बनाया है. तो अभी तो सैयद भाई लाइक से ऑब्वियसली ट्रक ड्राइवर है, थोड़ा सा रूड लैंग्वेज में बताया, लाइक तेरे बाप को पूछना है, तेरे बाप का जितना मेहनत है उतना मेरा भी मेहनत है, और उसका ही जितना कंपनी उतना ही कंपनी मेरा भी है. तब मेरे को लाइक वो एक हिट होता है आपको. सो आई गॉट दैट हिट के वाओ, मतलब कि पीपल लव द कंपनी, दैट्स व्हाई दे आर विद द कंपनी. और हमारे यहाँ पे जो रिटेंशन रेट है दैट इज़ मोर देन 85%. सो आज भी मेरे जो 85% स्टाफ है वो सारे पुराने हैं. हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमने अपडेट किया, वी गॉट ERP सॉफ्टवेयर्स, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन AI. हमारे यहाँ पे चैटबॉट्स पे वी आर वर्किंग ऑन, सो वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स. पर हमने कहीं भी ऐसा नहीं किया कि पुराने लोग को हटा दो. हमने ऑलवेज उनको भी ट्रांसफॉर्म किया है, उनको भी अपग्रेड किया है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया है. सो मे बी दैट विजन के जो आपके साथ जुड़े हैं उनको हमेशा साथ में रखो. डिफ़िकल्ट चैलेंजेस, डिफ़िकल्ट टाइम्स डेफिनेटली आएंगे, पर आपको ये कोशिश करना है कि उनको कैसे अपग्रेड करो, उनको कैसे विजन में अलाइन करो, एंड फिर आपका टीम खुद में खुद बढ़ेगा. फिर वो 6 से 650 हो जाएंगे और 650 से 6500 भी हो जाएंगे वेरी सून. Definitely. Great. As I'm really fond of family run businesses. या उनके पीछे जो विजन एंड जो ओवरऑल सपोर्ट रहता है एक बिजनेस में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है. सो एज यू हैव अ फैमिली बिजनेस, आपके इसमें अलग अलग डायरेक्टर्स है, जो सेट के 5 अंकल्स है, टोटली और 10 people. So how does a decision making or a new process plays a role? Like who is the one who takes the final call, or do you guys take it collaboratively? वो वर्कआउट कैसे होता है, if you can share? जैसे आपने बोला, सी एवरी कॉइन हैज़ अ फ्लिप साइड टू, प्रोज कॉन सब में होता है. सो बट जॉइंट फैमिली बिजनेस का एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है. मैं आपको बोलूँ तो 90% हमारे पास प्रोज है, 10% कॉन्स होता है. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट हर एक चीज़ में होना ही है. अगर जो मैं बोलूँ तो हस्बैंड वाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. इवन अ फादर एंड सन हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट, इवन आई हैव अ कॉन्फ्लिक्ट विद माई फादर. बट इट्स ऑल अबाउट, जब आपके फैमिली बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी. अगर जो एक मर्यादा आपको कभी भी क्रॉस नहीं करनी होती है. मैं लाइक जैसे कि मैं आपको मेरे एग्जांपल दूँ, सो मेरे 4 छोटे भाई हैं. इवन इफ आई एम रॉन्ग, दे वुड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड बट वोंट ऑब्जेक्ट टू माई डिसीजन. और जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि डिसीजन ले लिया, कोलैबोरेटिव डिसीजन ही होते हैं ऑलमोस्ट. आइडिया एक बंदे का होता है, बाकी सब फिर साथ में कोलैबोरेट हो जाते हैं. जैसे कि हम आज करें, दैट इज़ अ कोलैबोरेशन, कोलैब हो रहा है. तो जैसे कि कोलैब के इसमें क्या होता है कि आइडिया एक बंदे का होता है, उसमें सब लोग खुद के दिमाग लगाएंगे, खुद के पर्सपेक्टिव्स रखेंगे, खुद के व्यूज़ रखेंगे. बट वो जब एक फाइनल कॉल हो जाता है तो सब कोलैब कर जाते हैं कि सबको मिल जाना है. फिर आइडिया रॉन्ग हुआ, राइट हो, उसे राइट में बदल देना है. दिस हाउ द फैमिली बिजनेस वर्क्स अकॉर्डिंग टू मी. तो उसी तरीके से जब आपके प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर होते हैं, आपने जैसे कि देखिए, सबसे जो आई वुड से फैमिली बिजनेस में क्या हो जाता है कि एक ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है, और एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल एक फ्रीडम होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको किसी के प्राइवेट स्पेस में इन्वेट नहीं करना है. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. कभी कभी क्या हो जाता है कि जॉइंट फैमिली में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आते हैं, जब आप किसी का प्रिवेसी इवेट करते हो, उसमें आप डोमिनेट करने जाते हो. हमारे यहाँ पे ज़रा भी वैसा नहीं है. हमारे यहाँ पे सब कोलैब करके होता है, और अगर जो लोगों को पसंद नहीं है तो वी डोंट स्टक ऑन दैट थिंग, देन उसको मूव ऑन करना भी होता है. सी बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, पर कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना, दैट इज़ द मेन आइडिया. क्योंकि क्या हो जाता है पता है, आप है ना, अगर जो गधे होते हैं ना उनको आप एक डायरेक्शन में काम करा सकते हो, बट जो स्मार्ट चैप्स होता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अलाइन द स्मार्ट पीपल टुगेदर. लाइक कि स्मार्ट लोगों को साथ में काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है. पर जब आपके पॉलिसीज़, आपके रूल्स रेगुलेशंस बहुत क्लियर है, और आपको पता है क्या करना है. जैसे मुझे पता है कि मेरा लिमिटेशंस क्या होना चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट दिया जाएगा. बट अगर जो मेरा पर्सपेक्टिव कितना भी राइट होगा, जो वो एक्सेप्ट नहीं होता है इन अ फैमिली मीटिंग, तो आई कांट बी स्टक ऑन दैट, इवन आई हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट. सो वो हमारे यहाँ पे बहुत क्लैरिटी है, और जो बड़े डिसाइड करते हैं वही होता है.
ऐसा नहीं कि हमें फ्रीडम नहीं है, वी हैव ऑल द फ्रीडम, बट हमने भी वो चीज़ अपनाया हुआ है बिकॉज सी हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास उससे पैशन है, बट उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, हमारे पास नए ज़माने का नॉलेज है, पर नॉलेज के साथ जो हार्डशिप और एक्सपीरियंस है दैट ऑलवेज विंस. राइट. सो दिस इज़ हाउ द टीम इज़ वर्किंग, दैट उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, हमारा आइडियाज़ कोलैब करके वी आर वर्किंग. और ट्रांसपेरेंसी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा है. एंड एक और चीज़ है जैसे कि देखिए हर एक जॉइंट फैमिली के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होना ज़रूरी है. सो मैं बॉम्बे में रहता हूँ, माई कज़िन स्टेज इन नासिक, ऑल माई कज़िन्स दे ऑल स्टे इन नासिक. सो उसमें क्या होता है कि वेन एवर आई कम टू नासिक तो वी मेक श्योर कि वी ऑल स्टे टुगेदर, वी ऑल ईट टुगेदर. सो हमारे यहाँ पे एक रूल है मतलब फैमिली का, बहुत सालों से, मैं बचपन से वही फॉलो कर रहा हूँ. जो मेरे 5 भाई हैं, हम लोग 5 भाई हैं, मतलब मेरे 4 भाई, हम लोग पाँचों, मैं जब भी नासिक आता हूँ या ये लोग बॉम्बे में आते हैं, हम लोग को साथ में ही खाना खाना है. उसके बाद दिवाली हमको साथ में ही सेलिब्रेट करना है. अब ऐसा हो गया है कि दिवाली मतलब आई हैव टू बी विद देम. पहले इट वॉज नॉट अ चॉइस, मतलब यू नो के, बट नाउ वी चूज़ टू बी टुगेदर बिकॉज ऑफ बॉन्ड ऐसा क्रिएट हो गया है. तो नो गुजराती में कहावत भी है, जिसका अन्नधार उसका मनधार, मतलब जो अलग खाना खाता है उसके अलग विचार होते हैं, जो साथ खाना खाता है उसके साथ में विचार होते हैं. तो ये हमको हमारे पापा चाचाज ने ये सिखाया और वो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं. हमने उनको भी यही चीज़ करते हुए देखा है कि वो लोग 5 भाई कभी भी अकेले खाना नहीं खाते, वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं. वो लोग जब दिवाली में साथ में मिलके इतना वो करते हैं. सो तब से हम लोग छोटे थे, हम साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में मस्ती की, साथ में दुनिया देखी, साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया, और फिर वो बॉन्ड अपने आप क्रिएट हो जाता है. तो इस तरीके से, तो मैंने कहा ना कि जैसे कुछ रूल्स होते हैं उसको आप सही तरीके से फॉलो करो और आपका जो एल्डर जनरेशन है वो आपको राइट गाइडेंस दे, तो आपको कोई भी चैलेंज नहीं आए. देन आई वुड से कि फैमिली बिजनेस, फैमिली इट्स अ कोर स्ट्रेंथ. फैमिली ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है. फैमिली को देखो. और एक और चीज़ हमारे फैमिली में मैंने जो सीखी है, ऑलवेज फॉरगिव एंड फॉरगेट. मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ कभी भी रोज़ ही नहीं होती है, कभी कभी लाइक यू नो थॉर्न्स भी होते हैं. हमारे रोज़ के प्लान में भी देखो, वहाँ पे रोज़ है, उसके साथ कांटे भी आते हैं. तो उसमें फॉरगिव एंड फॉरगेट होना ज़रूरी है. फिर वो चीज़ को खींचना या उसको दिल से नहीं लगाना है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती है, भाइयों से भी गलतियाँ होती है. बट जब आपका जो आप उसको अपने कल्चर में ही डाल देते हैं, फैमिली कल्चर में, कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपको दिल में है, उसको डिस्कस किया, अभी का अभी इसको डिस्कस करके फिर फॉरगेट करो. मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब यू नो कि डू हैव एनी ग्रजेस फॉर माई कजिन्स, और सेम विद देम. तो फॉरगिव फॉरगेट का पॉलिसी जब आप अपनाते हो तो आई थिंक जब आपका घर सही से चल रहा है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली सही चलेगा ही. So, जैसे आपने फैमिली में बताया लाइक आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो, बट टू बिल्ड सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस, सो वहाँ पे भी क्या आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं या कुछ प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं? बिकॉज आज जो छोटे बिजनेसेस हैं बहुत सारे लोग स्टक हो गए हैं, बिकॉज ऑफ स्किल भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि वो जो रूल्स रेगुलेशंस या प्रिंसिपल फॉलो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं कर पाते हैं. तो वो आपके कंपनी में भी है क्या, जैसे आपके फैमिली में कुछ है? या जैसे मैंने लोगों में देखा है, स्मॉल बिजनेसेस है, उन लोगों को इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं है कि विजन नाम की कोई चीज़ होती भी है, या ये आज बनानी ज़रूरी है, या कंपनी थोड़ी बड़ी हो तब बनानी ज़रूरी है. सो मैं आपको पहले तो मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूँगा, वर्चूज. सो हमारे 4 वर्चू जिसको हम कहते हैं हमारे 4 पिलर्स. 4 पिलर्स जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपनी में जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, सो हमने उनको नाम दिया SNGTNs. और हमारा जो बिलीफ है, जैसे कि कंपनी को लेके कहिए कि, सो हमारे 4 वर्चूज हैं, हम उसे कहते हैं हमारे धर्म के 4 प्रिंसिपल्स. सो SNGT में हम लोग एक धर्म को फॉलो करते हैं. सो हमारा जो धर्म है, मतलब वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके नहीं है. हमारा धर्म है कि वी ऑल SNGTNs. और हमारा जो कोर पर्पस भी है वो भी बहुत क्लियर है कि टू सर्व पीपल, टू सर्व द इंडस्ट्री एंड टू डिलीवर ट्रस्ट ऑन टाइम एवरी टाइम. आपने पढ़ा होगा तो. सो बहुत क्लैरिटी है कि हम लोग पार्सल्स का डिलीवरी नहीं करते, हम लोगों का ट्रस्ट का डिलीवरी कर रहे हैं. एंड दैट इज़ विथ, लाइक यू नो, हमारे हर एक टीम को बहुत क्लियरली पता है. SNGT में कोई जब बंदा जुड़ता भी है तो जैसे इंडक्शन, तो इंडक्शन में उसे बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि व्हाट इज़ SNGT, व्हाट वाज SNGT एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी लाइक यू नो द फ्यूचर ऑफ SNGT. बहुत क्लैरिटी दी जाती है और उसके बाद ही बंदे को बताया जाता है कि आप ये सब चीज़ों के लिए रेडी हो तो ये आप यहाँ पे आओ. बिकॉज कुछ आपके प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी है. कोई भी बिज़नेस को एथिकली ग्रो करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स होना ज़रूरी है. सो हमारे जो 4 वर्चूज़ है वो है सत्य, सेवा, श्रम और सम्मान. तो सत्य को हम लोग इस तरीके से हमारी कंपनी में यूटिलाइज़ करते हैं.
जहाँ पे कि हमें किसी का इग्नोरेंस का फ़ायदा नहीं उठाना है, किसी से गलत नहीं बोलना है। पर ये सिर्फ कंपनी के लिमिटेड नहीं है, ये हर एक एसएनजीटीएन को खुद की पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। मतलब वो हमारी जब ईजीएम्स होती है, सो वी कीप रिपीटिंग दिस प्रिंसिपल्स। आप देखेंगे तो हमारा जो लक्ष्य पत्रिका होता है, वी हैव अ लक्ष्य पत्रिका, हमारे ईजीएम में हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके अंदर बहुत क्लियरली बताया जाता है कि 4 प्रिंसिपल्स को जो भी एसएनजीटी में जुड़ रहा है, उसको काम के साथ साथ में पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है, और तो ही वो एसएनजीटी में जुड़े। एसएनजीटी में सिर्फ काम करने के लिए मत आइए, एसएनजीटी में जिसको भी आना है, ही हैज़ टू सरेंडर। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू सर्व पीपल। जैसे हमारा एक और वर्चू है सेवा। सो हम लोग यही मानते हैं कि हमारे काफ़ी अच्छे कर्म रहे हैं एंड काफ़ी अच्छे नसीब है कि हमें इतने सारे लोगों की, हज़ार लोगों की सेवा करने मिल रहा है। बिकॉज इन एसएनजीटी per day we are serving almost 26 to 2500 customers every day we are serving, and मोटा मोटी 25,000 पार्सल की डिलीवरी हम लोग एवरी डे कर रहे हैं। सो हमारा जो क्लाइंटल है वो काफ़ी सारा वॉक इन भी है। सो ये सब कुछ कब हो पा रहा है, जब सारे लोग एक डायरेक्शन में वो वर्च्यू को फॉलो कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द वर्च्यूज़, सो सत्य को हम लोग बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं कंपनी के अंदर, जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन भी पास करना है कस्टमर्स तक में। तो वो बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि कस्टमर को झूठ नहीं बोलना है, कहीं भी झूठ नहीं बोलना है, घर में भी झूठ नहीं बोलना है। सी इट यू रिक्वायर लॉट ऑफ करेज ये वर्चुअस फॉलो करने के लिए। बोलने की बात अलग होती है, करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर आप जब उसको एक डिसिप्लिन, एक हैबिट फॉर्म कर लेते हो ना, तो उसका फ्रूट आपको ही मिलता है। वो एक पेशेंस से आपको उसको फॉलो करते रहना है। जैसे आप कोई भी पेड़ उगाते हो, बराबर है, तो समझो कि मैंने आज आम का बीज बोया, तो ऐसा नहीं कि मैंने आम का बीज बोया, उसको शिद्दत से देखा, मैंने दिन रात वो पेड़ को पानी दिया, 4 रात को पानी दिया और फिर वो पेड़ उग जाएगा, नहीं। यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू वाटर इट एवरी डे। तो सेम इज़ द वर्चूज़ का आपने वर्चूज़ बना दिया, उसको एवरी डे वाटर करो, एवरी डे उसको फॉलो करो, उसको अपने जहन तक में उतार दो, आपके वेन्स तक में उतर जाना चाहिए। तो आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आपकी टीम में, वो एकदम ड्रास्टिक हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि लोग मतलब दिल से काम कर रहे हैं, लोग खुद की एनर्जी लगा रहे हैं, पीपल आर गिविंग मोर देन 100%। सो वर्चूज़ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और ये वर्चूज़, जैसे कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ टाटास, तो आप देखेंगे तो रतन टाटा जी के भी प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है। ही हैज़ वेरी क्लियर रिफाइंड वर्चूज़। तो जब ये कंपनी, जो फिलेंट्रॉफी कंपनी, आप देखिए, ही इज़ अ फिलेंट्रॉफी लाइक रतन टाटा जी। तो कंपनी जो फिलेंट्रॉफी में इतना ज़्यादा बिलीव करती है, उनके इतने कोर प्रिंसिपल्स, आप देखिए कि टाटा के लोग कितने डेडिकेटेड है। आप किसी भी टाटा के एम्प्लॉय को ब्राइब कीजिए, बोलो मेरे पास आ जाओ, डबल पगार ले लो, नहीं आएगा। बिकॉज उनको पता है कि ये कंपनी का पर्पस बहुत क्लियर है, कंपनी का मिशन बहुत अलग है, कंपनी के वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से अगर जो किसी को भी ग्रो करना है, तो वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी है। कंपनी के अंदर आपके वर्चूज़ डिफाइन होना ज़रूरी है, कंपनी आपकी वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। और जो श्रम का जो हमारे इसमें मैं आपको कुछ वर्चूज़ का कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो सत्य का मैंने आपको बताया। कमिंग टू द श्रम, सो हमारे यहाँ पे भी स्ट्रांगली बिलीव कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। हार्ड वर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर जो और कोई भी काम में शर्म नहीं करना है, श्रम में कोई भी काम में आपको शर्म नहीं करना है। अगर जो कल उठ के मुझे झाड़ू भी लगाना पड़ा, तो आई शुडंट बी अशेम्ड कि मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, बिकॉज आई हैव सीन माई फादर डूइंग दैट सेवरल टाइम्स। अभी हम लोग कभी भी रैंडम गोडाउंस पे चले जाते हैं। सो डैड का बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि कोई भी गोडाउन पे जाते तो वो एकदम साफ़ होना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे हम लोग, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो वैल्यूज़, वो हमारे धर्म को लेके भी बहुत ज़्यादा है। धर्म मतलब मैं वापस कोई हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग तो सब धर्म को मानते हैं। हम लोग ने मस्जिद भी बिल्ड कराई है, मस्जिद की छत भी बनाई है, मंदिर भी बनवाए हैं, गुरुद्वारा में भी जाता हूँ। मैंने खुद ने मेरे बॉडी पे गुरुद्वारा के जो अजय मंत्र है उसको मैंने टैटू कराया। सो बिलीव इन ऑल द धर्म्स, हमारे लिए ऐसा कोई धर्म अलग नहीं है। बट सारे धर्म जो सिखाते हैं हम उसी में बिलीव करते हैं, उनकी लर्निंग से बिलीव करते हैं। तो वही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, वो आपका मंदिर है, वो आपका सब कुछ है, तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो जो गंदा दिखा, तो माई फादर वोंट गो एंड टेल दैट एम्प्लॉय के गोडाउन साफ़ करो, नहीं, वो खुद झाड़ू लगा के साफ़ कर देंगे। बिकॉज मेरी जगह है, मेरा ही है, और सब वैसा ही है। मतलब तो कोई भी काम में आपको शर्म नहीं करनी है। आपको, हमने खुद ने, जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड था, सो मेरा ट्रेनिंग पीरियड था वॉज फॉर गुड 6 years। तो मेरे को नासिक में मैंने 1 साल निकाला। आई वॉज इन वापी फॉर 6 months, आई वॉज इन अहमदाबाद, आई वॉज इन पुणे, आई वॉज इन औरंगाबाद। तो आई टू कीप ट्रैवलिंग। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लेबर्स नहीं हुआ करते थे। सो जब स्टार्ट में होता है, ऐसी व्हेन यू जॉइनिंग द बिजनेस ना, आपके लिए थोड़ा ऑकवर्डनेस होता है। आई एम द ओनर ऑफ SNGT,
मैं ये काम कैसे करूँगा. सो आई यूज्ड टू कंप्लेन टू माई फादर कि यहाँ पे ये नहीं है वो नहीं है, बट देन ही लाइक के अभी मैं तेरे साथ चलूँगा, देन टू टेक मी अलॉन्ग. तो मेरा कुछ कुछ कंप्लेंट्स था कि लेबर यहाँ वहाँ चले गई तो पार्सल उठा, मतलब मैं तभी पार्सल कभी उठाता नहीं था ना. वो अब नया नया बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, आप में अब तक वो वैल्यूज़ आए नहीं है, आप अभी तक कंपनी को समझ भी नहीं पाए हो. तो वो टाइम पे तो इस तो लाइक अरे पार्सल को ये उठा वो उठा. तो कपल ऑफ टाइम्स आई सॉ माई फादर लाइक कि माई मैनेजर वॉज ऑक्यूपाइड विद सम डिलीवरी, और वहाँ पे कुछ मल्टीपल डिलीवरीज आ गई थी. तो लेबर भी उसके 2 हाथ है, तो हमारे पास कुछ कुछ गोडाउन में कम लेबर 3-4 लेबर होता है. तो अभी वो एक ट्रक लोडिंग में लगा हुआ है, एक ट्रक के साथ डिलीवरी पे गया हुआ है, एक दूसरे कस्टमर को सर्व कर रहा था. एक कस्टमर आया, ये लाइक कि ये मेरा पार्सल है. तो पापा खड़े थे, पापा ने बिल्टी लिया, पार्सल लिया, तो बोला कि मैनेजर को पूछा कि ये पार्सल, तो बोला वो साइड पे रखा हुआ है. तो खुद पार्सल के ऊपर चढ़ के पार्सल निकाला. एज अब मैं भी आई वॉज यंगा, मतलब आई वॉज बी वॉट 21 समथिंग. एंड उन्होंने खुद ने पार्सल उठाया और उसको बोला कि कहाँ पे रखना है पार्सल. तो आई वॉज शॉक बिकॉज मैं नहीं कर रहा था, आई वॉज लाइक वॉचिंग. तो पार्सल उठाया उन्होंने, उस तो वो उसने बोला कि वहाँ पे गाड़ी में डालना है, तो उन्होंने खुद के उठा के वो उसके टेम्पो में डाल दिया पार्सल. तो फिर लाइक कि आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो लर्नड. तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि श्रम, वो क्वालिटी जो हमने सीखा है, वो सिर्फ मेरे पापा में नहीं, मेरे अंकल्स में है. ऑल माई अंकल्स, अगर जो आप मेरे काका लोग को भी देखेंगे तो वो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब कि जहाँ पे भी हेल्पफुल रह पाए टू द टीम वो हेल्प कर देते. मैं कजिन्स टू, कि वो लोग को भी आज बोलो कि कोई कस्टमर आता है कुछ काम है तो वो केबिन से फटाफट उठा के पार्सल उठा के दे देगा. सो कोई भी काम में शर्म नहीं करनी है. ये आप जब आपका टीम ये सब आपको करते हुए देखता है ना, तो आपका टीम को एक अलग मतलब एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट हो जाता है उनके जहन में भी. तो फिर मैंने कहा कि सब एक इक्वल वे में सब सेम विजन में लेके काम करते हैं. देन सम्मान में आते हैं. तो जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है कि ऑफिस पे आने के पहले हम लोग सब स्टाफ के साथ बैठते हैं. अभी भी आप हमारे कोई भी गोडाउन्स में कोई भी एचओ में चले जाइए तो वहाँ पे आप पाएंगे कि डायरेक्टर्स आर ऑलवेज विद द स्टाफ. वी हैव अ केबिन, पर केबिन हमारा सिर्फ हमारी मीटिंग्स के लिए या कुछ कुछ प्राइवेट टॉक्स होते हैं, प्राइवेट डिसीजंस होते हैं, उसी के लिए हम केबिन को यूज़ करते हैं. वरना मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर विद द पीपल. अगर जो गोडाउन पे भी जाता हूँ, हमारे पास हर एक गोडाउन में केबिन्स होते हैं, बट हमारा जो कोर फैमिली है लाइक पापा ये लोग 5 जन, हम लोग 5 जन, हम लोग हमेशा टीम के साथ ही रहते हैं. हमारे पास केबिन कुछ काम रहा तो यूज़ करना है, वरना वी प्रीफर स्टेइंग विद द पीपल एंड टू गिव द फीलिंग टू देम कि वी ऑल आर इक्वल. और हमारे यहाँ पे जो हमारा सम्मान का जो वर्च्यू है, वैल्यू है, उसमें बहुत क्लियरली एट द टॉप इट इज़ रिटन. आप हमारे कोई भी स्टाफ के पास आपको हमारा विजन कार्ड मिलेगा जिसे हम कहते हैं लक्ष्य पत्रिका. उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि SNGT में D2D में कोई फ़र्क नहीं है. सो D2D क्या है? D मीन्स ड्राइवर एंड D मीन्स डायरेक्टर. सो ड्राइवर और डायरेक्टर में कुछ फ़र्क नहीं है. इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि ड्राइवर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम लोग तो वॉचमैन है कंपनी के. हमारा काम है सिर्फ केयर करना, सब देख रेख करना, सब सही चल रहा है कि नहीं. द एक्चुअल टीम वर्किंग इज़ हमारे स्टाफ, हमारे ड्राइवर्स, हमारे मैनेजर्स, दे आर वर्किंग रियली हार्ड. वी आर ओनली द केयर टेकर. हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि सब बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं. सो दिस पीपल आर द रियल हार्ड वर्किंग पीपल, सो दे डिज़र्व मोर रिस्पेक्ट देन अस. सो हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू है कि ड्राइवर या डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके ओहदे में कोई डिफरेंस नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए. पर हमारे यहाँ पे हमने वापस एक लाइन ड्रॉ की है रिस्पेक्ट को लेके, वो होता है एज बैरियर. एज बैरियर वाइज सबको आप और तू में बात कर सकते हो, वो फ्रीडम हमने रखा हुआ है. जैसे कि आई एम 33 राइट नाउ, तो समवन इवन इफ़ माई ऑफिस बॉय इज़ 35 तो मेरे को उसका आप करके बात करनी है, उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो. और हमारे यहाँ पे आप कोई भी मेरे फैमिली में देखेंगे, मेरे कजिन्स भी कभी भी किसका तू करके बात नहीं करेंगे. समवन हु इज़ यंगर, समझो जैसे कि मेरा भाई इज़ ऑल्सो डायरेक्टर लाइक तो ही इज़ यंगर टू मी, तो मैं इसको तू करके बात करता हूँ, पर वो कभी मेरे से तू करके बात नहीं करेगा. एंड सेम वे कि एज में वो फ्रीडम दिया कि कोई आपसे छोटा है तो आप उसको ठीक है कैजुअली बात कर सकते हो, बट समवन हु इज़ एल्डर, डेजिग्नेशन डजंट मैटर, वो आपका ऑफिस बॉय हो, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, आपको उसको आप करके बात करना है. सो ये भी हमारे साथ बहुत क्लियर है कि सम्मान में किसको किस तरीके से क्या करना है. सो एक हमें एक रेडीमेड हैंडबुक मिला हुआ है पूरी टीम को, तो वो फॉलो करने के लिए, और वो फिर फॉलो के साथ साथ में हमने देखा है कि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, घर वाले इसको फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली और आपको उसका जब वैल्यू पता चलता है कि ये सब चीज़ों से कितना सुकून मिलता है, कितना वैल्यू, और द वे टीम इज़ वर्किंग, द डायरेक्शन आपको जो मिल रहा है ये वैल्यूज़ से, तो वो फिर आपको
ऑटोमेटिकली वो जहन में उतर के आपको फिर वो जीने लगता है और आपको मज़ा आता है. सो ये थे हमारे 4 वैल्यूज: सत्य, सेवा, श्रम एंड सम्मान. ग्रेट सर, ग्रेट. बहुत अच्छा लगता है टू लिसन दीज काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू कि एक कंपनी को एक्चुअली में चलाया कैसे जाता है. बट जैसे आपने बताया कि आपकी कंपनी में 650 प्लस लोग हैं. सो हाउ डू यू हैंडल जब कोई पॉलिटिक्स बीच में आती है या ड्राइवर्स के बीच में या स्टाफ के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं. वी आर ऑल्सो करेंटली हैविंग अ टीम, बट वी आर बिल्डिंग अ टीम. सो आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम दैट. देखिए, पॉलिटिक्स ना 2 तरह की होती है. एक होता है गुड पॉलिटिक्स, होता है बैड पॉलिटिक्स. जब तक गुड पॉलिटिक्स चल रहा है वो ज़रूरी भी है. अगर जो आपको कोई चीज़ को टैकल करना है, यू नीड टू बी अ गुड पॉलिटिक्स, तो वो डिफाइन होता है कि आपका टीम के एक्सपर्टीज़ किस में है. बैड पॉलिटिक्स में तो यू नीड टू चेक देम आउट वेरी क्लियरली. और हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे वैल्यूज़, हमारा सिस्टम इतना डिफाइंड है, मतलब कि सबको पता है कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है. देयर इज़ अ हैंड बुक, देयर इज़ अ वेरी क्लैरिटी अबाउट प्रिंसिपल्स, अबाउट द वैल्यूज़. सो हमारे यहाँ पे JDGA भी बहुत क्लियर है. सो जब देयर इज़ लॉट ऑफ क्लैरिटी और प्रोसेस जब होता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम कम आ जाते हैं. बाद में आपके जो डेली चैलेंजेस हो जाते हैं, आई वुड से कि अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है. पॉलिटिक्स होना भी ज़रूरी है, बट गुड पॉलिटिक्स. तो उसके अंदर कैसा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे डिफाइंड वैल्यूज़ है. तो ईगो में अगर जो मैं बात करूं, तो ईगो के लिए हमने एक कोर वैल्यू जो हमारा बनाया हुआ है वो है सम्मान. तो ईगो में जब सम्मान का जो मैं वैल्यू के बारे में बात करूंगा, तो उसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है किधर क्या है, कैसे करना है. अभी जैसे कि समवन हु इज़ एल्डर टू मी, तो आई कैन नॉट हैव एन ईगो टुवर्ड्स हिम. जब ऐसा भी चीज़ होता है कि जहाँ पे पीपल सी मी ऑल्सो एंड माई ब्रदर्स टू, कि दे बीइंग द डायरेक्टर, दे डोंट हैव ईगो फॉर द समवन हु इज़ एल्डर टू देम. सी बिकॉज ये हमारे संस्कृत में, मतलब संस्कृत हमारा जो है, हमारे संस्कृत के हमारे जो वेद्स है, जो आप अगर जो हमारे कोई भी चीज़ को रेफ़र करेंगे, हमारे स्पिरिचुअल धर्म की धार्मिक बुक है. मैं वापस कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म को लेके स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट आप किसी भी धर्म में जाइए, सब धर्म में ये सिखाया जाता है कि बड़ों की इज़्ज़त करना है, बड़ों को समझना है, उनको उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है. तो देखिए, रॉन्ग राइट तो सब एक परसेप्शन है. आज जो मैं राइट समझता हूँ वो कल उठ के रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज टाइम. जैसे कि मैं आपको टाइम के चेंजेस के बारे में बात करूँ, तो पहले फिजिकल मार्केटिंग वाज सो राइट, एंड दैट टाइम डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू नहीं था. नाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज़ टेकन ओवर सो मच कि आई वुड से कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग राइट नाउ. राइट. तो फिजिकल मार्केटिंग तो पूरा वाइप आउट हो गया. तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई कहेगा कि फिजिकल मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग, ही इज़ ऑल्सो राइट, बिकॉज उसका एक्सपीरियंस वो भी राइट है. एंड कोई बोलेगा डिजिटल मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग, ही इज़ ऑल्सो राइट. सो वो व्यूज़ को जब आपको कोलैब करना है, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेके आना है, तो सबसे पहला फैक्टर होता है एज किसका बड़ा है. और उसके बाद उसको हर एक को, देखिए हमारे यहाँ पे बहुत क्लियर सिस्टम है, हर एक को खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखने अलाउड है. और जब कॉन्फ्लिक्ट जैसा अराइज होता है, तो व्हाट वी आस्क देम इज गिव अस इन राइटिंग, गिव अस अ प्रेजेंटेशन एंड पुट इट इन अ आइडिया बॉक्स, और फिर सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे. तो वैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं. बाकी देखो, पॉलिटिक्स, ईगो, ये तो क्योंकि ह्यूमन है, हम लोग इंसान हैं, तो कभी कभी किसी का अलग मूड होता है, अलग. देखिए, हर एक इंसान का एक पर्सनल जर्नी होता है, एक खुद का फैमिली जर्नी होता है. वो इंडिविजुअल कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है, किसके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो चीज़ों में कभी कभी इंसान रॉन्ग कॉल्स ले लेता है, कभी अलग गुस्सा अलग जगह पे आ जाता है. तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं हमारे इसमें. तो हम लोग, बट वी मेक श्योर कि वी डोंट लूज़ आवर पेशेंस, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बाय यूजिंग अवर वैल्यूज़. जैसे एज को लेके पकड़ के हो गया, फिर काम को लेके कभी चैलेंजेस आ जाता है, तो हमारा तभी यही रोल होता है कि अगर जो 2 जन एक टीम में लाइन अप नहीं कर पा रहे, तो वी इंटरफियर एंड वी टेक अप दैट जॉब. ओके. तो जब आप देख रहे हो, एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि मेरे पास 2 ऑफिस बॉय है, अभी दोनों फाइट कर रहे हैं कि मैं चाय नहीं दूंगा. एक बोलेगा मैं चाय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ नाश्ता दूंगा. एक बोलेगा मैं नाश्ता दूंगा. अभी दोनों नाश्ते के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दोनों को चाय नहीं देना है. तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं खुद पर्सनली, और मैं फादर वुड कम, कोई चाय नहीं देगा, चाय मैं ही दूंगा, नाश्ता भी मैं ही दूंगा. तो ऑटोमेटिकली वो लोग का तो ईगो उधर ही ज़ीरो हो गया. मतलब आप समझे कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है डोमिनेट करने का, क्योंकि ये कंपनी डोमिनेट होकर कभी चली नहीं सकती हमारी कंपनी. तो यहाँ पे हर बार सबको एहसास दिलाया जाता है कि कोई रॉन्ग या कोई राइट नहीं है, और एक दूसरे को व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. बिकॉज ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट बोला,
आपको पता है काफ़ी सारी आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट से भी आती है, शॉर्टकट्स। वो तो है। शॉर्टकट जैसे आपने ईगो की बात की, कभी कभी इंसान एक दूसरे को प्रूव करने के लिए शॉर्टकट भी ढूंढ लेता है कि मैं राइट हूँ, मेरा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इंसान कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के साथ भी आ जाता है, कभी कभी वो अच्छे से अच्छी परफॉर्म भी कर लेता है। सो वो चीज़ को आप ईगो को किस तरीके से आप आपके कंपनी के फेवर में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर जो इसको ईगो आ गया कि मैं ही होशियार हूँ, वो रॉन्ग है, उसका काम बराबर नहीं है, तो आई विल अगेन इंटरवेन के ठीक है, आप राइट हो, आप कर रहे हो, पर ये ऐसा कह रहा है तो इसको भी मौका मिलना ज़रूरी है। एंड आई गिव अ ट्रायल पीरियड कि इसके काम को तू किस तरीके से करके दिखा। चल तू बोल रहा है कि यू आर सुपीरियर टू हिम, प्रूव इट। आई एम देयर इन द, आई विल बी द जज। आप उसको प्रूव करो, उसको भी मौका मिल गया, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। और अगर जो कुछ अच्छा निकल गया तो मेरा ही बेनिफिट है, और अगर जो उसके पास है तो इवन ही नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, वहाँ पे भी इंटरफियर कि देख उसको ये चीज़ में पैशन है इसके लिए कर पाया, तू भी और कोई चीज़ में थोड़ा सा पैशन लगाएगा तो इवन यू कैन डू इट। यू आर नो वेयर इन्फीरियर टू हिम, बिकॉज अब तक तो तूने ही किया हुआ है, एंड अब तक किया है और सही चल रहा है, कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। सो यू आर वेरी मच राइट। बट मे बी उसने वो चीज़ के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पैशनेट था, इसके लिए वॉज एबल टू डू। सो यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड योर पैशन, एंड यू ऑल्सो, यू आर नॉट डूइंग लाइक बैड, यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। बट किसी ने शायद से उसको वो चीज़ में आइडिया आ गया, इसके इसने वो परफॉर्म कर दिया। सो वो बैलेंस हम लोग को आता है। जैसे पॉलिटिक्स आपने कहा, तो यहाँ पे Right. पॉलिटिक्स काम आता है। कभी कभी डिप्लोमेटिकली खेलना पड़ता है। जैसे वापस हिंदी में वर्ड है नरोवा कुंजरोवा, वो भी भगवत गीता से सीखा हुआ था। सो अश्वत्थामा का आपको स्टोरी पता होगा। अश्वत्थामा जो थे, हाथी भी थे, और वो गुरुजी के बेटे का नाम भी था, जो अर्जुन के गुरुजी थे उसमें। एंड ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग वॉरियर, पर अभी उनको हराना वॉज एन इम्पॉसिबल, एंड ही वॉज वेरी मच अटैच टू हिज सन। तो तब कहना कृष्ण जी, अगेन मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स आई वुड से, मैं मतलब इन अ गुड वे, द वे ही प्लेड इन द महाभारत वॉज एक्सट्रीमली वेल। तभी तो अधर्म खत्म हो पाया। तो अधर्म को ख़त्म करने के लिए आपको कभी कभी रणनीति अपनानी पड़ती है, आपको कुछ डिफरेंट वे में करना पड़ता है, बट दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, दैट वॉज द नीड ऑफ दैट टाइम। अभी के टाइम में भी आपको अपनानी पड़ती है। तो जब उन्होंने वो चीज़ किया था कि हाथी को मारा था, उसका नाम अश्वत्थामा था, हाथी की डेथ हो गई, और जोर से कहा कि अश्वत्थामा मर गया, एंड जो गुरु थे उनको लगा उनका सन डाइड, तो ही आस्ट कि क्या अश्वत्थामा ये मेरा बेटा ही है। तब उन्होंने बोला था नरोवा कुंजरोवा, मतलब कि कि उन्हें क्लैरिटी सेंस नहीं दिया था। तो नरोवा कुंजरोवा में ही थॉट के हिज सन, तो उन्होंने वेपन गिव अप किया, एंड इमीडिएटली ही वॉज किल्ड। सो दिस इज़ हाउ द बैटल वॉज वन। सो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको नरोवा कुंजरोवा बनना पड़ता है। यू डोंट हैव टू टेक बोथ द साइड्स, बट यू हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ होल सिचुएशन। सो इवन आई हैव अ मार्केटिंग बैकग्राउंड। सो जैसे भी आपने शुरू में बोला था कि आप गुजरात में तो कर ही रहे हैं, एंड देन इवन एक्सपेंडिंग टू राजस्थान एज वेल, बट द SNGT फुल फॉर्म इज श्री नासिक गुड ट्रांसपोर्ट्स, राइट? या So, in terms of marketing, I don't think it's a good way of doing marketing, having a name of a city in a brand name and expanding to different cities. So again, coming to this question, this was a very big challenge for us in the initial stage, I would say. So when I joined the company, so मेरा जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया ना, I was into marketing again, but I was into physical marketing. तो मेरा काम क्या था, जैसे कि मैंने कहा मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, तो तभी TVS का बॉक्सर बाइक आता था, और सॉरी TVS का विक्टर था, और बजाज का बॉक्सर बाइक आता था, बॉक्सर करके था, आई रिमेंबर। सो मेरे को एक बाइक दे दिया गया था। माई जॉब वॉज टू लाइक डू R&D एंड डू मार्केटिंग। सो एक पैम्पलेट का 1000 पैम्पलेट प्रिंट करा के एक पैक के साथ दे देते थे, और नासिक में अंबड़ MIDC, सातपुर MIDC, तो रैंडम हमें कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ टारगेट दिया जाता है कि मैक्सिमम कस्टमर के पास जाना, कार्ड लेके आना है, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। तो अभी यंग एज में तो मतलब इतनी एक्सपर्टीज़ भी नहीं थी, पता भी नहीं था मार्केटिंग क्या होता है। हमारा तो मार्केटिंग ये था कि पैम्पलेट दे के आ जाओ, मार्केटिंग हो गया। तो जब ऐसे स्टार्ट किया हमने, तो पहले मैंने सिर्फ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो हर एक कंपनी के वॉचमैन के जाके बोलता था कि लॉजिस्टिक्स मैनेजर से मिलने का है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे शॉप्स होते थे, तो वहाँ पे हम लोग पैम्पलेट देते थे। फिर आपका जो भद्रकाली हो गया, नासिक रोड हो गया, नासिक रोड पे किराने की दुकानें पैम्पलेट बांटते थे हम लोग। फिर RK पे किराने की दुकानों पे पैम्पलेट बांटते थे। हमारा वही काम था कि मोबाइल के शॉप वाले उसको भी दे दिया। देन जैसे ये पैम्पलेट बांटते बांटते हम लोग ने सीखा कि कोई सवाल पूछ रहा है कंपनी के बारे में,
तो खुद ब खुद आप R&D करते हो, आप फीडबैक से खुद ब खुद आपको जवाब देना सीख जाते हो. तो लाइक क्या का पैम्पलेट है, लाइक हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, नासिक गुड्स करके है. अभी मेरे को पता था कि तभी हमारा काफ़ी सारे ब्रांचेस भी थे. वी आर ऑलरेडी इन गुजरात दैट टाइम, वी सर्विंग गुजरात स्टेट ऑल्सो. तो लोग है ना काफ़ी टाइम मुझे कहते थे, अरे तुम्हारा तो नासिक है, तो गुजरात में कहाँ से आ गया. तो मैंने बोला कि बराबर है, बट कि है हमारा सर्विस. देन मैंने पुणे जब मार्केटिंग के लिए गया था, सो आई डन मार्केटिंग इन ऑल द लाइक बोथ द स्टेट्स. पुणे में भी किया हुआ है, नासिक में किया हुआ है, बॉम्बे में किया हुआ है, गुजरात में, वापी, अहमदाबाद, सब जगह, बिकॉज आई स्टेट देयर. तो पुणे में भी जाते थे, बोलते हैं आपका तो नासिक गुड्स है, तो पुणे में कहाँ पे हो सकता है आपका. सो देन वी रियलाइज्ड कि द नेम, जो नाम हमारे लिए स्टार्ट में बहुत बेनिफिशियल था, बिकॉज समवेयर नासिक मार्केट हमारा काफ़ी बड़ा रेशियो था, अभी भी है. बट नासिक से आगे बढ़ने के लिए जब हम लोग कर रहे थे, तब दिस नेम वॉज बिकमिंग अ बैरियर टू अस. पहले वो हमारे लिए फ्रूटफुल था, जैसे मैंने कहा कि एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स. तो ये नाम हमारे लिए पहले बहुत प्रो था, बिकॉज इट वॉज ईजी फॉर पीपल टू रिमेंबर कि नासिक मतलब नासिक गुड्स, नासिक का ट्रांसपोर्ट मतलब नासिक गुड्स. बट ये नासिक से अब महाराष्ट्र में पहुंच गया है, अब ये गुजरात जा चुका है, अब दिल्ली और राजस्थान में भी आ चुका है. तब ये नासिक गुड्स नाम काम नहीं करेगा. एंड वो हमने रिसर्च, R&D, और हमारे यहाँ पे कैसा है कि साल में एटलीस्ट 1 मंथ हम लोग खुद पर्सनली R&D करते हैं. कुछ ऐसे होता है, कुछ मोमेंट्स पे हम लोग खुद पर्सनली ऑन फील्ड चले जाते हैं. जैसे कि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो मी पर्सनली, तो मेरा एक कार्ड है जहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. सो वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कार्ड लेके मैं रैंडम कंपनीज में चले जाता हूँ, फाइंड आउट करने के लिए कि पीपल नो अबाउट अस नो, और कौन सी कंपनी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है. तो सेम विथ माई ब्रदर्स टू. तो सबके अलग अलग कार्ड बने हुए. किसी को एक कार्ड बना हुआ है कि नासिक ब्रांच मैनेजर, किसी का है कि अहमदाबाद में मेरे कज़न था, सो अहमदाबाद का लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव. तो सबके एक कार्ड वैसे भी रखे हुए कि हम लोग R&D इज़ द मस्ट. आपको मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है. और वो आप देखिए, टीम आपका बहुत अच्छा है, पर आपको पर्सनलाइज्ड भी उस पर आपका एक टच होना ज़रूरी है. सो वो R&D में जब हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग को काफ़ी सारा फीडबैक मिला कि हमें तो पता ही नहीं है कि बीइंग अ नासिक में लोगों को लगता है कि सिर्फ नासिक तक ही है. आपका धूले जलगा भी हमें पता नहीं है, आप अहमदाबाद राजकोट भी सर्व कर रहे हो, पता नहीं है. सो देन वी डिसाइडेड कि हमें एक बहुत बड़ा कुछ बूम क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा. बिकॉज सिर्फ नाम चेंज करने से अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज हमारा जो बिज़नेस है उसमें 80% ऑफ वॉक इन क्लाइंट्स. तो नीड टू क्रिएट अ बूम. तो वो टाइम पे हमने किस तरीके से किया कि नासिक में तभी फाल्गुनी आई थी फर्स्ट टाइम, आई गेस. तभी एक इवेंट था, तो वहाँ पे हमने स्पॉन्सरशिप दिया था. एंड इसके 1 महीने पहले से हमने सब जगह पे कमिंग सून करके हमने पेपर में ऐड दिया था. हमने काफ़ी नासिक में बैनर्स लगाए हुए थे, हमने बॉम्बे में बैनर्स लगाए थे, गुजरात में बैनर्स लगाए थे कि श्री नासिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, बड़ा सा एक रेड कलर का स्क्वायर है, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है और नीचे लिखा है कमिंग सून. क्या है वो किसको भी नहीं बताया. हमने काफ़ी वो टाइम पे एडवर्टीजमेंट के पीछे पैसा खर्चा किया था, बट रियली वांटेड टू क्रिएट दैट बज इन द मार्केट, लाइक कि क्या है पता नहीं है. एंड बाद में हमने कस्टमर्स मीट बुलाया था नासिक ताज में, जहाँ पे हमने नासिक के अराउंड आई वुड से 1500 to 2000 पीपल को हमने इनवाइट किया था. बाद में हमने सेम गुजरात में किया, सेम पुणे में किया, सेम बॉम्बे में किया. ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे हमने ऐसे कस्टमर्स मीट रखा, और हर जगह के कस्टमर्स को हमने बताया कि श्री नासिक गुड्स इज़ नाउ SNGT. वी आर गोना प्रमोटेड एज SNGT. अभी आप हमारे ट्रकों पे देखोगे तो SNGT लिखा हुआ है, हमारे बिल्स पे, हमारे LR कॉपीज पे, हर जगह पे SNGT. सो सिंस 2015 वी आर प्रमोटिंग इट एज एन SNGT. अब SNGT होने से हमारा बिजनेस अचानक से बूम होने लग गया. इट स्टार्टेड ग्रोइंग बिकॉज जो बैरियर था नाम, वो ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड से धीरे धीरे वाइप आउट होते गया, चले गया. और लोगों को अब समझने लगा कि SNGT महाराष्ट्र और गुजरात में सर्व कर रहा है. SNGT मतलब सिर्फ नासिक को लेके नहीं है. सो पीपल यूज्ड टू नो अस पहले के वाया श्री नासिक गुड्स. नाउ पीपल नो अस एज एन SNGT. सो हमारा लोगो, हमारा जैसे कि एब्रीवेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा स्टेशनरी, हमारे बोर्ड्स, सबको हमने चेंज करके पूरा हमने इसको रीस्ट्रक्चर किया. ब्रांडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग हमने वो टाइम पे मतलब टारगेट रखा था. ब्रांडिंग में हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया. आज भी अगर जब गूगल पे भी सर्च करेंगे तो SNGT के आप देखेंगे तो इतने सारे सर्चेस आ जाएंगे.
आ जाएंगे, श्री नासिक वुड्स थोड़ा कम विजिबिलिटी हो जाएगा. सो वी डिसाइडेड कि टू प्रमोट SNGT, जहाँ पे ब्रांडिंग प्लेड अ वेरी बिग रोल. एंड आई वुड से कि ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग की वजह से हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया आफ्टर चेंजेस इन द एब्रीवेशन. Right. So before you came to this podcast, I had a talk with your brother, and he gave me insight that SNGT started with a milk van. Yeah. So what is the story behind the milk van? So like we are transporting goods, but we started off as a milk van. सो क्या था कि जैसे कहा कि नाउ द फादर्स हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कंपनी. अभी ट्रक खरीदने जितने पैसे थे नहीं, और सबकी शादी हो चुकी थी. सो फादर हैड फ्यू सेविंग्स, और दैट टाइम मॉम का कुछ ज्वेलरी था शादी में जो मिला हुआ था, एंड ट्रक खरीदने जितने पैसे नहीं थे तो एक बंदा था उनके कांटेक्ट में था. बिकॉज वो टाइम पे मार्केट की व्हीकल से बिजनेस करने का ट्राई कर रहे थे. बट मार्केट व्हीकल कैसा होता था कि क्योंकि मार्केट व्हीकल का आपके पास कुछ प्रॉफिट बच नहीं रहा है, कुछ पैसे बच नहीं रहे, और मार्केट व्हीकल में लोड करने जितना बिजनेस था नहीं. अगर जो मैं एक मार्केट की व्हीकल 9 टन की लगाता हूँ, क्योंकि वो टाइम पे छोटी गाड़ियों का कंसेप्ट नहीं था. वो टाइम पे छोटी छोटी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो छोटी गाड़ी सिर्फ एक मिल्क वैन हुआ करती थी, और बाकी बड़ी बड़ी ट्रकें थी वो ज़माने में. बिकॉज लिमिटेड मॉडल्स, मतलब टाटा अगर जो मॉडल लॉन्च कर रही है तो 10 साल में एक मॉडल आएगा, वही मॉडल रहेगा. वो जो अफोर्ड कर सकता है वो लेगा, नहीं कर सकता वो नहीं लेगा. अशोक लेलैंड का कहिए, सब कंपनियों के बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स थे. बड़ी ट्रक खरीदने के पैसे नहीं थे, सेकेंड हैंड ट्रक मिल नहीं रही थी, एंड वो टाइम पे कुछ सेविंग्स था एंड कुछ ज्वेलरी पड़ा था मॉम का. तो पापा टुक अ बोल्ड कॉल डेफिनेटली, एंड मॉम ऑल्सो सपोर्टेड हिम. तो वो टाइम पे मॉम का ज्वेलरी बेचा, एंड वो एक मिल्क वेंडर था जो दूध गाड़ी चलाता था. अभी वो बंदे का एज हो चुका था, तो ही वांटेड टू सेल हिज व्हीकल. एंड अगेन आई वुड से कि गॉड्स ग्रेस, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड हिम, और ही कमिंग टू अस. ऐसे रैंडम स्टॉक में उसको कन्विंस कर दिया, बॉट अ मिल्क वैन. और मिल्क वैन का बेनिफिट क्या हो गया, एवरेज अच्छा, साइज़ छोटा, बजट में. सो देन वी स्टार्टेड विद अ डोर डिलीवरी कंसेप्ट, जो नासिक में किसी भी नहीं किया था. सो डोर डिलीवरी वॉज इन्वेंटेड बाय SNGT इन 1991. सो आज आप देखोगे तो हर एक स्टार्टअप डोर डिलीवरी को, मिल्क रन को प्रमोट कर रहा है. बट हम लोग ये चीज़ ऑलमोस्ट 33 ईयर्स से कर रहे हैं, 32 ईयर्स से. सो छोटी गाड़ी होने से कहें ना कि वो रोल ऑफ डेस्टिनी, कुदरत को चाहिए था कि हम इसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ करें. जैसे मैंने आपको कहा कि पर डे वी आर डिलीवरिंग 2500 कंसाइनमेंट्स. सो वो मोस्टली हमारे डोर डिलीवरी होते हैं या तो कुरियर पार्सल्स होते हैं. सो वो छोटी गाड़ी होने की वजह से हमारा लिमिटेशन था वो, पर वो लिमिटेशन हमारे लिए मार्केट लीडर बना देगा वो एक्सपेक्ट नहीं किया था. छोटी गाड़ी होने की वजह से हम लोग बड़े बड़े लोड नहीं ले पा रहे थे और छोटे लोड्स के डिलीवरी कर रहे थे. पर वो जो अनइंटेंशनल सर्विस ने हमें वही चीज़ का मास्टर बना दिया, बिकॉज वी बिकेम द पायोनियर. सबके पास बड़ी ट्रक है, बड़ी ट्रकों में पॉसिबल नहीं था डिलीवरी करना, और हमारे पास छोटी गाड़ी है, तो छोटी गाड़ी तो कहीं भी जा सकती है, मल्टीपल लोकेशंस पे जा सकती है. एंड दिस इज़ हाउ डोर डिलीवरी स्टार्टेड एंड पीपल स्टार्टेड चूजिंग अस. सो ये मिल्क वैन से जो कुछ भी हुआ, मतलब द लाइफ, द डेस्टिनी चेंज्ड. तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए जो होता होता है. है अच्छे के लिए होता है. ये वी स्ट्रांगली बिलीव, मतलब मैं डैड तो मेरे को काफ़ी टाइम समझाते भी है. देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो चैलेंजेस बहुत आते हैं. सो आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस हमारे बिजनेस में डाउनवर्ड्स भी बहुत आए हुए हैं. वी हैव फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यूनियन प्रॉब्लम्स भी हो चुके थे, सब कुछ हुआ था. ऐसा भी टाइम आता है कि वी हैड टू पॉज द कंपनी. फाइनेंशियली भी पॉज हो गया था, सब कुछ पॉज हो जाता है, ऐसा टाइम्स आता है. बट वो भी जब टाइम था ना हमारा, सो वी हैड अ प्लान कि वी मेड अ कॉन्क्रीट डिसीजन दैट हम लोग ये इंडस्ट्री से बंद करके हम लोग चले जाएंगे, बंद करके चले जाएंगे. ऐसे भी तकलीफ़ वाला टाइम आया था हमारी इसमें, बट नेवर लॉस्ट होप कभी हारे नहीं. और बहुत क्लैरिटी थी कि कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वही पर्सपेक्टिव को लेके चले. तो हमने हिम्मत रखी, पापा लोग ने हिम्मत रखी, एंड मैं तो जस्ट ये इंसिडेंट के बाद ही मैंने कंपनी ज्वाइन की. बिकॉज दैट वाज द, आई थॉट के ये जो ख़राब टाइम चल रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, कि जहाँ पे मेरी भी ज़रूरत है कंपनी में. एंड आई गॉट इनटू द बिजनेस एट वेरी अर्ली एज. सो तभी जो हमारे साथ जो बुरा टाइम चल रहा था, सो हमने तभी भी हिम्मत नहीं हारी. हमारा बिज़नेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका था. सो तभी हमें जो भी चेंजेस अपग्रेडेशन करने थे, जैसे कि लोगों को ट्रेन करना
टेक्नोलॉजी की तरफ, हमने वो पीरियड को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया कि Right. जिसको छोड़ के जाना है चले जाए, जिसको साथ रहना है वो साथ रहे, और जो साथ में रहा उसको ट्रेन किया, सैलरी भी दे रहे थे, उसको ट्रेन किया, उसको अपग्रेड किया, और हमारे जो बुरे टाइम में जो भी चैलेंजिंग पीरियड था, जो भी मतलब ख़राब लोग थे, वो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो गए. गुड पीपल स्टेड विद अस, एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ. एंड फिर हमारा कंपनी परसेंटेज वाइज नहीं बट मल्टीप्लाई होकर ग्रो होने स्टार्ट हुआ आफ्टर दैट बैड पीरियड. सो बुरा समय आपके जीवन में आना ज़रूरी है, बट बुरे समय पे राइट डिसीजन और सीख लेना बहुत ज़रूरी है. देखिए क्या होता है कि इंसान बुरे समय में टूट ज़रूर जाता है, पर टूटने से हार नहीं माननी है. कि बुरा समय आता है आपको तोड़ने के लिए, तो टूटोगे ही टूटोगे. ऐसा नहीं कि कोई इंसान ऐसा नहीं कि जो बुरे समय में टूटता नहीं है, पर टूटने के बाद उठने का आप में करेज होना चाहिए, उठने का जज्बा होना चाहिए, जिसमें करेज कहा, और आपको वो ठान लेना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. जब ये चीज़ को जहन में भी उतारनी है कि आज शायद से ख़राब पीरियड चल रहा है, पर आगे उठ के मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं वो चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ. खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए. और जब आप में ये चीज़ है, तो एक और डायलॉग है, जो आप कोई भी चीज़ को सच्चे दिल से प्यार करो तो पूरी कायनात उसे मिलने में जुट जाती है, आपसे मिलाने में जुट जाती है. एंड दैट्स प्रूवन, दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ. तो ये बहुत प्रूवन चीज़ है, बिकॉज नेचर इस तरीके से काम करता है, यूनिवर्सल लॉ है ये. सो मैं आपको अभी यूनिवर्सल लॉ के बारे में बात करें. जैसे आपने कहा, तो मेरा बिलीफ कैसे इस पर स्ट्रांग हुआ. हम तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक है ना पॉट मंगाते हैं, उसमें थोड़ी सी लाल मिट्टी डालते हैं, हम तीनों बैठ के कोई भी सीड आप मेरे को बोलिए. आई एम गुजराती, आप यो I'm a बोरी. बोरी, बनिया. बनिए, राइट, बराबर है. अभी हम लोग तीनों सीड को यहाँ पे डालेंगे, तीनों वाटर करेंगे, तीनों कुछ कोई भी सीड हो सकता है. हम लोग स्प्राउट्स भी लगा सकते हैं, मूंग भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, वॉट एवर यू से. तीनों उसको अभी कभी प्लांट करेंगे, मतलब सीड को हम लोग जस्ट मिट्टी में डालेंगे, उसको वाटर करेंगे. हम लोग तीनों देखेंगे ना, 1 वीक के बाद सबको सेम स्प्राउट्स दिखेगा. ये है यूनिवर्सल लॉ. यूनिवर्स किसी का रिलीजन, किसी की वेल्थ, किसी का कैरेक्टर, किसी का नेचर में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है. यूनिवर्स आपके कर्मा को बहुत स्ट्रांगली करता है. आप जो चीज़ में दिल से मेहनत करोगे, उसे मैनिफेस्ट करोगे, वो होना और 100% होना ही है. दिस इज़ द यूनिवर्सल लॉ. हम तीनों यहाँ पे बैठे हैं, हम तीनों बाहर जाएंगे, आपको भी धूप मिलेगी, मुझे भी धूप मिलेगी, इनको भी धूप मिलेगी. ऐसा नहीं कि मुझे धूप मिलेगी, आपको बारिश मिलेगी, ऐसा होगा नहीं. नहीं. तो ये यूनिवर्स का लॉ अगर जब आप समझोगे, तो यूनिवर्स बहुत क्लियरली हमें एवरी सेकंड मैसेज देती है. आप जो हवा ब्रीथ कर रहे हो, वही मैं भी ब्रीथ कर रहा हूँ, वो भी ये ब्रीथ कर रहा है. और यूनिवर्स जो भी देती है ना, वो इक्वालिटी में देती है. और यूनिवर्स के जो कुछ लॉज है, जैसे मैनिफेस्टेशन कहा, जैसे आपको मैंने कहा कि सेल्फ बिलीफ, तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सल लॉ है. जब आपको इतना भरोसा आपको रखना है खुद पे, वो कॉन्फिडेंस को यूनिवर्स पे रखना है. और एक ना एक पावरफुल टूल है, वो है इंटेंशन. अगर जो आपका इंटेंशन बहुत प्योर है, राइट है, और आपके गोल बहुत क्लियर है कि आपका इंटेंशन है कि कंपनी को आगे लेके जाना है. जैसे हमारा इंटेंशन क्या, आपको बताता हूँ. हमारा इंटेंशन है कि कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है, पर उसके साथ लोग जुड़े और काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, काफ़ी सारे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन दर्द जो है, चैलेंजेस है, वो रिजॉल्व हो जाए, लोगों का सिस्टम प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाए, और लोगों का हमारे ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बिजनेस बढ़े. दिस इज़ अवर इंटेंशन. जब आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, प्योर है ना, तो वो यूनिवर्स का काम है फिर आपको आगे बढ़ाना. वो आपका भी ड्यूटी नहीं है, वो कुदरत करेगा आपके लिए, और करता भी है. जैसे मैंने आपको लॉ समझाया कि सेम सीज़न हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट क्रीड, डजेंट मैटर. तो वही आपका जो इंटेंशन है, दैट इज़ अगेन अलाइन टू द यूनिवर्स. सो प्योर इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन है, तो कायनात खुद ब खुद जुड़ जाएगी आपके साथ. जैसे आपने अभी बोला कि बैड टाइम्स जो आपको आया, बट ट्रांसपोर्ट में जैसे हम लोग देखते हैं ये चीज़ें बहुत आती हैं, रोड रेजेस, ड्राइवर्स कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं तो उनको नींद भी आती है, एक्सीडेंट्स. सो वो सब चीज़ें भी क्या आपके बिजनेस में फेस हुई थी? देखिए, जैसे एक सबकी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती है, वैसे हमारी चलती है. जो सबके पास चैलेंजेस है, वो हमारे पास चैलेंजेस है, बट वी डील इन अ वेरी डिफरेंट वे. हमारे यहाँ पे एक्सीडेंट रेट्स बहुत कम है, बिकॉज अगेन कमिंग टू द वैल्यू सिस्टम, हम लोग ड्राइवर को प्रतिज्ञा पत्र देते हैं, और हमारे यहाँ पे एवरी 6 मंथ देयर इज़ अ ट्रेनिंग.
अभी हमारे यहाँ पे जैसे कोविड था, तो हमने हमारे ड्राइवर को तो खाना खिलाया, हमने बाहर के ड्राइवर को भी खाना खिलाया। हमने जो लेबर्स भाग रहे थे, स्टैंडर्ड लेबर्स, सो हमने उनको हमारे यहाँ पे शरण दिया। सो वी स्ट्रांगली बिलीव कि हम जो भी कमा रहे हैं सोसाइटी से कमा रहे हैं, और ड्राइवर्स दे आर द रियल हीरोज़। वी कॉल देम सड़क के सिपाही। ये सड़क के सिपाही रियल हीरोज़ हैं, तो इनकी वजह से हम हैं। तो इट्स आवर ड्यूटी, करना ही चाहिए, टू गिव इट बैक टू देम एंड देयर अगेन दोज पीपल लाइक ट्रक ड्राइवर्स। सो हमारे यहाँ पे एवरी 6 मंथ्स ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद हम लोग ड्राइवर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये टाइम तो हमारे जो महाराष्ट्र के एडीजी हैं ट्रैफिक के, रविंद्र सिंगल जी, उनके साथ हमने ड्राइवर डे सेलिब्रेट किया। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, मैं उनको खुद मिलने गया था। ये एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट, और उन्होंने तो ड्राइवर्स को सारथी का दर्जा दिया। सारथी, जैसे कि महाभारत में हम सभी ने देखा होगा कि सही सारथी होने की वजह से पांडवास किस तरीके से जीते, युद्ध जीत गए। महाभारत का महायुद्ध सही सारथी होने की वजह से जीता जा सकता है। तो हमारा जो ट्रेड सही सारथी होने की वजह से कहाँ पहुंच सकता है। सो ये चीज़ को कंसिडर करके हमने डिसाइड किया, हमने हमारे ड्राइवर को प्रतिज्ञा पत्र दिया हुआ है कि जहाँ पे ये लोग कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आके ड्राइव नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग होता है उनके लिए, मेडिकल कैंप रखते हैं, हेल्थ चेकअप होता है, आँखों का चेकअप कराते हैं, हेल्थ का चेकअप कराते हैं। जैसे 31 में आता है, हम लोग वहाँ पे कैंसर ड्राइव हमने रखा था, जहाँ पे ओरल कैंसर का हमने टेस्ट कराया था उनके लिए। बाद में उनके लिए मेडिकल के लिए उनका अस्थमा, उनका हार्ट, ईसीजी एंड वेरियस एक्टिविटीज़ वी डू फॉर देम। एंड हमने उनका इंश्योरेंस रखा हुआ है। ड्राइवर के लिए हमने एक और एडवाइजरी फॉर्म स्टार्ट किया, दैट इज़ कॉल्ड SNGT लीगल, जहाँ पे नॉट फॉर आवर ड्राइवर्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ ड्राइवर्स कम्युनिटी आई वुड से, कि कोई भी ड्राइवर है जो हमारी कंपनी में नहीं भी है, उसको कुछ लीगल एडवाइस चाहिए, तो वी हैव एडवोकेट्स विद अस जो उसको फ्री लीगल एडवाइस देते हैं। हाई कोर्ट तक भी अगर उसको जाना है तो हाई कोर्ट तक भी इसको फ्री हम लोग सपोर्ट देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी डू फॉर द पीपल। एंड आई वुड से कि ज़रूरी भी है, बिकॉज वो लोग हैं तो हम हैं। सो हमारे यहाँ पे ड्राइवर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हमारी कंपनी का पार्टिसिपेंट समझते हैं, और हम तो डेफिनेटली हमारे ड्राइवर्स को हमारे से सुपीरियर समझते हैं। सो ये सब चीज़ें जब होती है, सब कुछ अलाइन होता है, और वैल्यू सिस्टम आपका जब स्ट्रांग होता है, यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू गोना डू इट। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारी वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर ट्रक ड्राइवर्स, फॉर बस ड्राइवर्स, फॉर पुलिस डिपार्टमेंट एंड काफ़ी सारे हम लोग SNGT इनिशिएटिव्स हम लोग करते रहते हैं। सो आई हैव सीन योर लिंक्डइन एंड आपने काफ़ी बार आनंद महिंद्रा सर के साथ बहुत पोस्ट डाले हैं। सो क्या वो एक जनरल फोटो था या आप उनसे मिले, डिस्कशन हुआ, और अगर हुआ तो लाइक वो किस टाइप के पर्सनैलिटी है? बिकॉज ट्विटर पे वो जब भी कुछ डालते हैं तो इट्स हिलेरियस ऑलवेज। So Anand Mahindra is the Twitter king, I would say. Like he's so active on the social media on Twitter specifically. So Anand Mahindra जी एक ऐसी पर्सनालिटी है, so I've met him 4 times, और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ आपने बात की, आपने खुद के बारे में बताया, एंड ही वुड रिमेंबर योर नेम। वो बंदे हैं वो। सो आनंद महिंद्रा जी के साथ मैंने महिंद्रा के इवेंट्स में, अवार्ड नाइट्स में मिला हूँ। बाद में मैंने पूरा दिन उनके साथ स्पेंड किया हुआ है। सो एज आई वॉज इन IIMA एम्पावर मैंने किया हुआ है। सो वहाँ से वी गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू बी विद आनंद महिंद्रा जी। सो जहाँ पे आई वॉज अलाउड a good time with him. I would say a whole day I was with him with a few couple of friends, and वहाँ पे I spoke about my vision, and वहाँ पे हमारा ऐसा टॉपिक चल रहा था कि जहाँ पे हमें क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स या रिफॉर्म्स आने चाहिए टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्री। मतलब सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स नहीं या ट्रांसपोर्टर्स नहीं, ओवरऑल इंडस्ट्री, तो क्या नई चीज़ आनी चाहिए। एंड जब हमारा डिस्कशन हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है, मे बी ऐसे ही सुनने के लिए सुना होगा, मतलब कि इज़ टॉकिंग टू मी, मस्ट बी अ काइंड गेस्चर। बट मेरे लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, एंड आई वुड से इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी, वेयर आनंद महिंद्रा हिमसेल्फ ऑन द स्टेज स्पोक अबाउट मी एंड अबाउट माई आइडिया एंड माई पैशन टुवर्ड्स इंडस्ट्री। मतलब मेरा वो एक्सपीरियंस कि ये बंदा आपके साथ बात कर रहा है, आई वुड से सर, नॉट इवन बंदा है, लेकिन सर आनंद महिंद्रा जी आपके साथ बात कर रहा है, गिविंग यू टाइम। उनका पूरा दिन मिलना वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट आई वुड से। और इसके बाद आपने जो जो बात की है उनको याद है, आपका नाम तक याद है, और आपका नाम लेके जब बात करते हैं,
सो वो टाइप ऑफ इज़ वेरी हम्बल. मतलब यू नो मीटिंग हिम, ग्रीटिंग हिम वोंट बी लाइक अ क्या मीटिंग अ बिलियनर. मतलब विल बी सो हम्बल, सो नाइस, सो काम. मतलब वो जिस तरीके से बात भी करेंगे, मतलब यू नो आपका एकदम कैजुअली बात करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यू आर टॉकिंग टू अ फेलो पर्सन. मतलब कहीं भी आपको वो एटीट्यूड, वो एरोगेंस या कोई भी नहीं दिखेगा आपको उसमें कि वो कहीं भी कोई नेगेटिव या बुरी क्वालिटी हो. मतलब हिज वर्ड्स वुड बी लाइक यू नो हिज टॉक्स वुड बी अ विजडम फॉर यू, कि आप उनकी पर्सनालिटी से ही आप इतने इंस्पायर हो जाएंगे. इवन हैविंग अ वर्ड विथ हिम वुड बी वेरी इंस्पायरिंग, because he would give you the knowledge, share like you know, matlab he's that way is very much like you know I would say very much very warm leader. Matlab someone who would talk to you openly about everything and with a lot of clarity. A very great personality. सो अभी सर जैसे आई हैव अ ऑफ टॉपिक क्वेश्चन. जैसे यू आर इनटू द लॉजिस्टिक्स सेगमेंट इंडस्ट्री. अभी रिसेंटली अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव यू नो कम अप विद द क्विक कॉमर्स पार्ट. यू नो लोगों को और आसान बनाने का काम कर रहे हो. 10 मिनट में घर पे डिलीवरी, 15 मिनट्स में आप फॉर एग्जांपल आपका ब्रेड खत्म हो गया, आप मंगा लो, 15 मिनट में घर पे आ जाएगा. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ये इंडस्ट्री का फ्यूचर लॉजिस्टिक्स का? क्या क्विक कॉमर्स की तरफ जा रहा है और इंडिया के लिए सस्टेनेबल कैसे है? जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में डोर डैश है, तो डोर डैश अच्छा है, बट इंडिया में ये क्या सस्टेनेबल है ये मॉडल? देखिए मैं आपको, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए, एवरी विजिबल एंड टैंजिबल थिंग नीड्स ए ट्रांसपोर्ट. एवरीथिंग, आपका हवा को छोड़ के पानी के को भी आपका ट्रांसपोर्ट लगता है. अगर जो आप कोई भी मिनरल वाटर भी लीजिए, इवन इट रिक्वायर्स ए ट्रांसपोर्ट. आजकल तो हवा भी आपकी पैक होके ट्रांसपोर्ट होके लोगों के हॉस्पिटल्स में या घर तक पहुंच रही है. सो एवरी विजिबल एंड टैंजिबल थिंग नीड्स अ ट्रांसपोर्ट. तो डेफिनेटली समवन हु इज सर्विंग एंड गिविंग डिलाइट सर्विस एंड ट्रांसपेरेंसी हैज़ टू सक्सीड. बिकॉज ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, ये बहुत वास्ट है. इसमें इतने सारे आई वुड से कि अब तो जैसे कि इतने सारे अलग 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 इसमें हमारे पास विंग्स है. जैसे टैंकर ट्रांसपोर्ट हो गया, सरफेस लॉजिस्टिक्स हो गया, बाद में जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, आपका ई कॉमर्स डिलीवरीज हो गया. सो पर अब तक बहुत लिमिटेड प्लेयर्स थे हु वेर एबल टू डू डोर टू डोर जैसे कि वी आर डूइंग इट. सो हमारे कंपटीशन में हार्डली फ्यू फेलोज थे. अभी नाउ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग बिकॉज इट्स अ वेरी बिग मार्केट. एंड आप देखेंगे तो हमारा इंडिया का जो कल्चर भी चेंज हुआ है. अगर जो आज से 10 साल पहले हमारे पास ऑनलाइन ऐसी कोई अमेज़ॉन जैसी कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी जहाँ पे वी कुड शॉप, जहाँ पे वी कुड चेक फॉर द डिस्काउंट्स, या जहाँ पे वी कुड कंपेयर द प्रोडक्ट. आपको उसके लिए फिजिकली स्टोर पे जाना पड़ता था. आपको कपड़े से लेके, मोबाइल से लेके, ग्रॉसरी कुछ भी खरीदना है, हर एक चीज़ के लिए आपको स्टोर में जाना पड़ता था. नाउ गोइंग टू द स्टोर वुड बिकम इनकन्वीनियंट फॉर लॉट ऑफ पीपल. बिकॉज ऐसा नहीं कि आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है, टाइम की कमी है. सो व्हाट दिस पीपल आर डूइंग इज सेविंग टाइम. द पीपल आर प्रिफरिंग मनी ओवर टाइम. उनको पैसों की पड़ी नहीं है. कपल ऑफ pennies for the delivery is okay than me going all the way, leaving my work, going to the grocery store or going to buy a bread. अगर जो bread 50 का है, I don't mind spending 50 more for the delivery charge, but I want to save my time because I know what I can make out of my time. आज की तारीख में आज देखेंगे 10 साल पहले लोगों के पास टाइम था, 15 साल पहले टाइम था. आज लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा है, टाइम नहीं है. So the valuable asset right now is time. So that's what the people are doing it like, you know, so these people have got the game कि कहाँ पे पैसा मिल रहा है. एंड B2C या जैसे डोर टू डोर डिलीवरीज, शॉप टू डोर डिलीवरीज, it has a very big market and these people are definitely going to do well unless and until they don't have some weird strategies. I'll tell you why. Because being into logistics, I have myself experienced, हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी है जिनका वैल्यूएशन 5,000 करोड़ था, 15,000 करोड़ पे पहुंच गए. एंड विद इन अ स्पैम ऑफ 3 years कंपनी 200 करोड़ में बिक गई. दिस इज़ द लाइवलीस्ट एग्जाम्पल. आई थिंक लॉजिस्टिक्स प्लेयर डू नो द नेम. आई डोंट वांट टू नेम इट राइट नाउ बिकॉज आई नो द ओनर्स टू. एंड ऐसी भी कंपनी है जो कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप्स, ओके, जो लोग बहुत कम स्पैन में दे हैव क्रॉस 10,000 करोड़. सी ये मैंने क्या कहा कि एवरी विजिबल एंड टैंजिबल थिंग नीड्स ए ट्रांसपोर्ट, बट यू नीड टू हैव अ राइट गेम. अगर जब आपको लॉस मेकिंग करना है
तो आपको एक चीज़ समझा दूँ कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन बिजनेस सोसाइटी बोलो, आप लोग कब जाके ऑनलाइन शॉपिंग करोगे मालूम है? ब्रेड की बातें अगर जो हटा दो, मोबाइल पे आते हैं। आपको मालूम है कि अमेज़ॉन पे मोबाइल 55,000 का है और स्टोर में 45,000 का है। आप स्टोर में जाओगे, मैं तो चला जाऊँगा। तो सेम वे हमारा इंडियन सोसाइटी है, वो डिस्काउंट भी कंपेयर करता है, और जिसको मनी मैटर नहीं करता वो बहुत कम लिमिटेड परसेंटेज है, मे बी अ बिजनेस क्लास पीपल और रिच क्लास आई वुड से, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 50,000 का मोबाइल 60,000 में भी ले लो। पर जो इकोनॉमी हमारे यहाँ पे, जो हमारा मेजर पॉपुलेशन है, दैट बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनको फ़र्क पड़ता है, प्राइस गेम उनके लिए है। इवन फॉर द इंडस्ट्रीज़, कॉस्ट कटिंग आज की तारीख में सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वो टाइम पे जो स्टार्टअप्स है ना, ये क्या करते हैं, फंडिंग्स लेके आ जाते हैं, और इनका फंडिंग अच्छा खासा होता है, 1000 CR 2000 CR वैल्यूएशन गेम है पूरा इनका। सो व्हाट दिस पीपल डू इज दे कैश बर्न। आप उनका लॉस भी तो चेक कीजिए, आप उनका वैल्यूएशन देख रहे हो, ये देखो कि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, ये कंपनी एवरी ईयर कितने साल का प्रॉफिट बुक कर रही है। एंड समबडी हु इज़ नॉट मेकिंग प्रॉफिट, आई वोंट कॉल इट अ सक्सेसफुल कंपनी। मेरा पर्सनल डेफिनेशन है अबाउट द सक्सेस। भले वैल्यूएशन कुछ भी हो। मैंने वही तो कहा कि मेरी आंखों के सामने कंपनी 10,000 करोड़ पे पहुंच गया, 250 करोड़ में बिक गई। अभी ये जब 10,000 से 250 करोड़ का ट्रांजेक्शन आया, उसमें मारा कौन पता है? जो ट्रांसपोर्ट वेंडर्स थे उनके, जो ट्रक ड्राइवर्स थे। हमारे यहाँ पे 85% पॉपुलेशन इस चालक टू मालक। मतलब मैं खुद ही ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं खुद ही ट्रक का ओनर भी हूँ, मैं खुद ही किस्तें भर रहा हूँ और मैं खुद ही पगार खुद को दे रहा हूँ। ऐसे 85% है। मतलब मोटा मोटी इंडिया के अंदर 80 लाख ट्रक वाले सिंगल ट्रक या लेस देन 5 ट्रक के ओनर है, जो खुद ही चालक मालक है। अभी ये बेचारे वेफर थिन कंपटीशन में, वेफर थिन मार्जिन में काम करते हैं। मतलब इनको गाड़ी पे दिन का 500,000 रुपया मिलता है। अभी ये लोग सब जब ये बड़े बड़े शार्क के साथ में जब जुड़ जाते हैं, इनको 6-6 महीने तक पेमेंट्स नहीं मिलती है, बिकॉज ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। वो कंपनी के फाउंडर तक तो छोड़ो, कंपनी के नेशनल हेड तक भी नहीं पहुंच पाता है। नेशनल हेड भी बहुत दूर हो गया, कंपनी के ऑफिस के बाहर तक नहीं खड़े रह पाते हैं, बिकॉज ऑल दिस स्टार्टअप्स हैव बिग जाइंट बाउंसर्स, बहुत कुछ इनके पास होता है, सिक्योरिटी, मतलब इन तक आप कोई पहुंच नहीं पाता जल्दी से। तो ये सब चीज़ें होने कैसे हो, तो जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ से 250 करोड़ में जो लॉस होता है ना, वो ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवरों का होता है। तो somebody who is disrupting the market, I would say these people are killing the small people, not disrupting. एक तो वो लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा कॉस्टिंग 1,000 रुपीज़ पर टन का आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस पीपल गो एंड कोट 700 रुपीज़, तो 300 रुपये तो कॉस्टिंग तो उनका भी 1,000 रुपीज़ में ही है। डीजल जो प्राइस में मेरे को मिल रहा है, उनको भी उसी में मिल रहा है। मेरे को जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उनको भी वो पे करना है। मेरे को जो टोल देना है, वही उनको देना है। मैं जो आदमी को बेसिक सैलरी देता हूँ, उनको भी वही देना है। शायद उनकी ज़्यादा होगी, मेरे से कम एक्सपेंसेस नहीं हो सकते। They have fancy offices to charm the investors. They have fancy this thing. उनका हर एक चीज़ फैंसी होता है to charm the investors. तो उनका तो खर्चा हमसे डबल होना चाहिए। तो ये जो उनका जो कैलकुलेशन है, दैट इज़ कैश बर्न करना है और डिसरप्ट करना है। और वो डिसरप्शन में वो लोग क्या करते हैं कि जो छोटे लोग जो उनके साथ जुड़ते हैं, वो पूरे पूरे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे काफ़ी सारी स्टार्टअप्स आए हुए, हमें भी पता है कि वी ऑल आर यूजिंग दोज फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस, पैसेंजर कार्स में जो आए हुए हैं। सो पहले उनको एक लॉलीपॉप दिया गया था कि बसेस के बाहर बैनर पड़ते थे, महीने का 1.5 लाख रुपया कमाओ, टैक्सी चलाओ। राइट। आज की तारीख में आप बैठो उनके साथ बात करो, इनका 500 रुपया नहीं कमा पा रहा है। वो बोलते हैं यार 1.5 लाख के चक्कर में इंजीनियर था, 50,000 की सैलरी छोड़ के आ गया, टैक्सी चला रहा हूँ, अब मैंने कि 20,000 नहीं कमा पा रहा हूँ। तो ये जो देखिए इनका जो रोज़ी पिक्चर है, वो दिखाने के लिए फिगर्स बहुत बड़े हैं, पर अंदर का जो प्रैक्टिस है वो कितना एथिकल है, वो भी तो स्टडी करो। तो वो चीज़ जब आप उसको डीप में स्टडी करोगे, अभी जो डिलीवरी गाय आते हैं, अभी वो 20 रुपया कमाते, 30 रुपया कमाते हैं, उनको उसके ऊपर मार्जिन नहीं आता है, बिकॉज ऐप यूज़ करके कंपनी 20% लेके जाती है। अभी डिलीवरी चार्ज व्हाट आई एम पेइंग टू अ फूड डिलीवरी पार्टनर इज़ 40 रुपीज़। नाउ दिस गाय इज़ गेटिंग 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में उसका ट्रैवल टाइम 30 to 40 मिनट्स हो गया। 10 घंटा काम किया, कितना कमाया उसने? 500-700, तो ऐसे भी कमा रहा है। कुछ लोग ओवर टाइम करके कमा रहे हैं। तो जब स्टार्ट में उनको 1,200 रुपया मिलता था, तभी वो लोग हैप्पीली घुस गए, पर 1,200 का 300 हुआ, पर इसके ऊपर कहीं आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं वो नहीं है। सो ये जो लॉलीपॉप है, ये लोग लॉलीपॉप दे के आगे बढ़ते हैं,
इन्वेस्टर्स को चार्म करते हैं और बाद में जो प्रॉमिस किया वो कभी डिलीवरी नहीं करते। आप जो फील्ड पे जो उनके लिए काम करते हैं उनसे उनसे पूछो कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, हाउ मच दे आर सफरिंग, और ऊपर से इनको टारगेट सिस्टम है कि आपको इतना तो कंप्लीट करना ही है, तो आपको एक बड़ा लॉलीपॉप मिलेगा इंसेंटिव्स का। आपको पता है इनमें से 80% लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाते और इंसेंटिव्स नहीं मिलता है, और बाकी जो 20% टारगेट पूरा कर पाते हैं उनकी हालत ही नहीं होती जीने जैसी। वो तो सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, सब कुछ सैक्रिफाइस करके पैसे के पीछे भाग रहा है बिकॉज देयर इज़ सम इमरजेंसी इन द फैमिली। तो उस तरीके का जो ये डिस्ट्रप्शन है, इट्स नॉट ओनली डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंडस्ट्री, आई वुड से इट्स अ मोलेस्टेशन ऑफ द पीपल टू। या तो उनके साथ एक लिखित में होना चाहिए एक एग्रीमेंट कि आपके साथ जुड़ने पे आपने कहा कि बंदा 1.5 लाख रुपया कमाएगा, तो एग्रीमेंट साइन करो, भले लाख रुपया कमाएगा लिख के दे दो। है क्या उनमें दम? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पीपल आर, वो वाव फैक्टर आता है उसके फिगर सुन के, पर उनका प्रैक्टिस इज रॉन्ग है। और आखिर में ये वैल्यू का गेम है, ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया नहीं है। बिकॉज मैंने मेरी इंडस्ट्री में एटलीस्ट 100 स्टार्टअप जैसे है जो 1000 करोड़, 1500, 10,000 करोड़ पे पहुँचे हैं, बट कोई भी प्रॉफिट नहीं कर रहा है। बुक्स के साथ मैनिपुलेशन ज़रूर कर रहे हैं, और उनके साथ जो लो लेवल पे जो काम एक्चुअली ग्राउंड पे जो मेहनत कर रहे हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। बट जो ये अचीव कर रहे हैं 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, बट इन्होंने कुछ तो ऐसा फिगर आउट किया होगा जो एक लोकल जो प्लेयर है, एक जो सिटी में, गांव में जो बैठा है, वो फिगर आउट नहीं कर पाए, जो इतने कम स्पेन में वो उतने टर्नओवर तक पहुंच गए। मैंने आपको क्या बोला, इट्स ऑल अबाउट द चार्मिंग, इट्स ऑल अबाउट द चार्मिंग आइडिया। सी, आज इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, आप जो दिखाते हो, जैसे कि हम सभी को टैक्सी पता है कि जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए का पिक्चर दिखाया था, तो आज लाखों लोग पागल को के भागे, काम धंधा छोड़ के सब टैक्सी चलाने लग गए। अब लोगों ने टैक्सी चलाने के साथ साथ में लोगों ने मिस्टेक क्या किया पता है? जो मारुति की आपकी वैगनआर गाड़ी हो गई, बाद में अलग अलग सेगमेंट्स की जो छोटी गाड़ियाँ थी, लोगों ने ईएमआई पे लेना स्टार्ट कर दी। अब मैंने वो गाड़ी ले ली, अब मैं गाड़ी बेचूंगा तो मेरा 30% इमीडिएटली टूट जाएगा, मैंने कर्जा लिया हुआ है। अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है गाड़ी चलाने के सिवाय। अब मैं 35,000 कमा रहा हूँ, 25,000 तो किस्त चले जा रही है 10,000 रुपये मेरे पास बच रहा है। तो इस तरीके से जो आपने कहा कि उनका जो ये पूरा एक है ना जो वैल्यूएशन गेम है, ये पूरा चार्म है कि हाउ यू कैन फूल पीपल, दे आर जस्ट चार्मिंग यू। जैसे कि आपने सवाल किया कि कुछ तो होगा इनके अंदर, कुछ तो बात होगी, तो आप पहले तो इनको स्टडी कीजिए कि इनमें बात ज़रूर है। इनमें बात है, सेल्स के एक्सपर्ट्स है और दे आर वेरी गुड इन चार्मिंग पीपल। वो लोग के पास आइडियाज़ बहुत चार्मिंग है। पर आप जब वो देखोगे कि जैसे टैक्सी वालों में उल्लू बनाया गया, 1.5 लाख रुपया कमाओगे, आज 25,000 नहीं कमा पा रहा है। बाद में उन्होंने लोगों को चार्म दिया कि आप लोग टैक्सी खरीदो, खुद की टैक्सी खरीदो और मुनाफा कमाओ। और तभी मुनाफा भी दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, तभी तो लोगों को लाख लाख रुपए भी महीने के दे दिए। अब क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे है ना मंकी माइंड चलता है कि एक बंदे को 1 लाख रुपया दे दो तो उसके पीछे 1000 जन आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। लॉटरी सिस्टम क्या है, आप सभी को पता है कि लॉटरी इज़ बैड फॉर अस। फिर भी आप देखो हिंदुस्तान में लाखों लोग लॉटरी खेलते हैं, जीतता तो एक ही है। अगेन साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी। सो व्हाट स्टार्टअप वही कर रहे हैं, और ऊपर के लोगों को पता है कि ये लोग के पास जो आइडिया है वो चार्मिंग आइडिया है, जहाँ पे लोग आएंगे, खुद पैसा डालेंगे। आज आप लॉजिस्टिक्स में स्टार्टअप कंपनी में आप देखोगे ना, उनके पास एसेट्स नहीं है। ट्रक तो साला और कोई फेलो ट्रांसपोर्टर लेके बैठा हुआ है, ड्राइवर कोई और है। ये लोग ने ना ट्रक खरीदी है ना ड्राइवर को पेरोल पे रखा हुआ इट्स है। काइंड ऑफ अ मीडिएटर थिंग। एग्रीगेटर्स, दे आर प्योरली एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर किसी और की ट्रक लेके, किसी और का ड्राइवर लेके किसी और को माल पहुंचा रहा है, पर वैल्यूएशन 5,000 करोड़ है और उसमें से भी कमीशन खा रहा है। कंपनी का एसेट्स ही नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, पर उन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है ना, वो लोग उसके अंदर आ गए। जैसे टैक्सी में लोग घुस गए, वैसे लोगों ने यहाँ पे ट्रकें डाल दी। अब ट्रकें डाल दी, देखिए ट्रक सस्ती नहीं आती है, ट्रक 25 लाख 30 लाख रुपए की आती है। अब मैंने किसी के भरोसे पे मेरी कैब, और वो लोग क्या करते हैं, आपको लोन लेने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये जो गेम है ना, ये गेम है लॉलीपॉप गेम टू फूल द मंकी माइंड्स। ये स्टार्टअप्स का स्ट्रैटेजी होता है। जैसे टैक्सीज में आपने देखा, लोगों ने एक जन को 1.5 लाख रुपया मिला, उसका बैनर देख लिया बसेस के बाहर, मोबाइल पे एड्स, आपके सोशल मीडिया पे आ रहा है 1.5 लाख रुपया कमाओ, 1.5 लाख रुपया कमाओ। तो लोगों ने काम धंधा, इंजीनियर
MBA के बड़े बड़े स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, सब ने छोड़ के टैक्सी पे लग गए और उसके बाद एक और लॉलीपॉप दिया, आप खुद की गाड़ी खरीदो और 1 साल में कर दो उसको फ्री। तब आप लोग क्या सोचते हो, अरे हाँ यार, मतलब 5-7 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाऊंगा प्लस गाड़ी भी फ्री हो जाएगी। आपने गाड़ी ले ली EMI में। बाद में अचानक से बॉम्ब आता है कि अब आपको हम लोग इंसेंटिव्स नहीं देंगे। बाद में एक नया बॉम्ब आता है कि अब आपको हम लोग 6 रुपये किलोमीटर देंगे 20 रुपये से। तो ऐसी सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे कुछ लॉ रिफाइन नहीं है हमारे पास जो सिस्टम है उसका ये स्टार्टअप्स फ़ायदा उठा रहे हैं कि कोई कुछ भी कमिट कर सकता है, कोई किसको कुछ भी कर सकता है, एंड वही चीज़ें होती है। पर अभी जो बंदा है जिसने EMI पे गाड़ी ले ली, अब उसे तो EMI भरनी है, उसने तो खुद का जो भी पैसा वैसा लेके कर दिया और बाद में उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो उनके साथ जुड़ा रहे, बिकॉज वो लोग इस तरीके से वो लोग लोगों को पकड़ के रखते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि सब कुछ डोमिनेट कर लेते हैं। जैसे टैक्सी में आ गए तो टैक्सी वालों के पास ऑप्शन ही नहीं था, उनको साफ़ होना ही पड़ा। वो लोग साफ़ हो गए, या तो उनका पास ऑप्शन है कि इनके ऐप्स में जुड़ जाओ या तो घर बैठो। तो दैट्स व्हाट दे डू। सो हमारी इंडस्ट्री में इन्होंने कैसे किया कि इन्होंने हमारी इंडस्ट्री में लॉलीपॉप दिया कि मार्केट से ज़्यादा भाड़ा। अब देखिए उनका टैगलाइन देखिए, कमाइए मुनाफा, सबसे ज़्यादा मुनाफा, सबसे ज़्यादा भाड़ा। अब हमारी इंडस्ट्री में 85% है जो है चालक मालक है, जो है लेस देन 5 ट्रक ओनर। मतलब ये बंदा खुद ही ट्रक खरीदता है, खुद ही ट्रक चलाता है, महीनों महीनों खुद ही ट्रक पे रहता है, एटलीस्ट 25 डेज इन अ मंथ ही इज़ ऑन ट्रक। दिन रात सब कुछ ट्रक में गुजारता है, माल यहाँ से वहाँ कस्टमर की सेवा करता है। अभी ऐसे लोग को जब आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा भाड़ा, आज वो कमा रहा है 500 से 1000 रुपये दिन का, वेफर थिन मार्जिन उसके लिए, उसमें उसको सोना जागना सब कुछ ट्रक में है। अभी जब उसको लॉलीपॉप दिया जाता है तो बोलेगा कि हाँ यार, मैं तो यहाँ पे दिन के 1000 कमा रहा हूँ, 2000 कमाऊँगा। चले जाता है इनकी चपेट में। ये लोग स्टार्ट में आपको 2000 नहीं 3000 भी देंगे, पर दैट इज़ फॉर द वेरी फ्यू प्लेयर्स। अभी ये जब बंदा कमा रहा है तो वो ड्राइवर ढाबे पे जाता है तो दिन के 150 से 200 ड्राइवर्स को मिलता है। अब जब ये 150-200 ड्राइवर देख रहे कि यार इस तो साला महीने का 3000 कमा रहा है, महीने का 1,00,000 रुपये लेके जा रहा है। अब ये 200 के 200 लोग क्या करते हैं, खुद का काम छोड़ के इसके पास घुस गए। अब ये 200 लोग और 200 लोग को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे इनके पास चले जाते हैं। अब इनके पास ट्रक भी है, बाद में जिनके पास ट्रक नहीं है वो भी इनके पास ट्रक लेके खड़ा हो जाता है। तो तब ये लोग क्या करते हैं, इनके पास तो फंडिंग की कमी नहीं है, कैश बर्न जो लोग करते हैं। आप इनके इनिशियल बुक्स देखो, इनिशियल बुक्स जब कंपनी 500 करोड़ पे थी 300 करोड़ लॉस कर रही है। कंपनी 1000 करोड़ पे पहुंची 700 करोड़ का लॉस बुक किया। कंपनी 5000 पे पहुंची 3000 करोड़ का लॉस बुक किया। कंपनी 7000 पे पहुंची तब कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। तो इस 7000 की जर्नी में ये लोग ने जो लोगों को मारा है, जो लोगों ने इनके चपेट में आके ट्रक के लिए इनके साथ जुड़ गए, बाद में इन्होंने सीधा कम कर दिया कि अब आपको 3000 ने अब आपको 1000 रुपये देंगे। अब कंपनी नहीं कर सकती। अब पर वो बंदे ने 25 लाख की ट्रक आपके भरोसे पे ले ली है। अभी उसका ऑप्शन ही नहीं है, उसने एग्जिस्टिंग तो खुद का सब कुछ छोड़ दिया है, खुद का बचाया कुचाया पैसा, खुद की लाइफ टाइम की सेविंग्स। आज 25 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ स्मॉल ट्रक ड्राइवर। खुद की लाइफ टाइम की सेविंग लगा दी, बैंक से लोन ले लिया। अगर जो ट्रक नहीं चलाएगा इनके हिसाब से ये लोग आपको EMI जितना पैसा देते हैं, पर EMI जितना ही पैसा दे रहे हैं अभी। उनको मालूम है कि इसके 65,000 की EMI है, तो अब इसको ऐसे बांधो कि 65 के 70,000 रुपये ही कमाए, उसके ऊपर ना कमाए। तो वो बेचारा लाइफ लॉन्ग उनका स्लेव बन गया। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, जब तक गाड़ी फ्री नहीं होती, 10 साल तक की लोन है, तो 10 साल तक तो इनकी गुलामी करेगा। ये जहाँ बोलेंगे वहाँ भागेगा, जहाँ बोलेंगे वहाँ पे लोड लेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ही हैज़ टू वर्क विद देम, वर्क फॉर देम। तो इस तरीके से ये स्टार्टअप्स इन्हें ऐसे फंसा लेते हैं जहाँ पे इनके पास एस्केप नहीं होता है। एंड देन सो मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, इनका नंबर अगर आप देखेंगे 5000 करोड़ 7000 करोड़, वेरी एक्साइटिंग, वेरी प्रॉमिसिंग। अब बोलो कि वाह यही कंपनी का काम करना चाहिए। काम करके तो देखो, रियलिटी तो उसको एक्सपीरियंस करो। सो मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्टार्टअप्स है दिखाने के लिए अलग है, अंदर से बहुत कुछ अलग है। उनके अंदर की प्रैक्टिसेस आप देखो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। पेमेंट्स टाइम पे नहीं मिलती, लोगों के साथ चीट हो जाता है। सो इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग आई वुड से। Somebody who is not making profit
एंड क्रिएटिंग डिसरप्शन शुडंट बी एंटरटेन मेरे हिसाब से, बिकॉज वो डिसरप्ट करके क्या कर रहा है, वो एक आ रहा है बंदा 4,000 लोग को मार रहा है और फिर वो नुकसान भी कर रहा है और लोग उसकी वाहवाही भी कर रहे हैं, उससे इंस्पायर भी हो रहा है। आई तो थिंक कि उनसे कुछ इंस्पिरेशन लेना भी नहीं है। जब जिसे पैसे कमाना नहीं है तो बिज़नेस क्या करेगा? और वो लोग, आपको लगता है कि वो लोग ये प्रैक्टिस को आगे, वो लोग यहाँ पे कंपनी बना के बेचने के लिए आए हुए हैं। इस स्टार्टअप को देखो 5,000 करोड़ उसको पोटेंशियल दिख रहा है कि और भी 7,000 बना सकता हूँ, तो 7,000 बनाएगा, 10,000 बनाएगा, पर बेच के भाग जाएगा। बेचना ज़रूर है। ये कंपनी इनकी प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है बिकॉज दे आर मैनिपुलेटिंग विद बुक्स। तो ये लोग पैसा या सस्टेनेबल आइडिया लेके नहीं आए, या डिसरप्ट क्रिएट करके वैल्यूएशन गेम खेल के निकल जाने आएंगे। आज 90% स्टार्टअप वैल्यूएशन में फिर भाग जाते हैं। दैट्स व्हाट द गेम इज। तो व्हाट टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम, उनका लॉन्गिटिविटी क्या है, उनका सस्टेनेबिलिटी क्या है? So I तो find it very stupid also कि like you know कि why to work with them, why to work with aggregators? अब जो आपका ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्टर्स है, जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको राइट डायरेक्शन दिखाओ, उनको गाइड करो और उनके साथ ही काम करो। आई तो कीप टेलिंग लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स टू कि आप ये शार्क के चक्कर में मत जाओ, आप लोग छोटी मछली हो, और शार्क कभी भी छोटी मछली के साथ दोस्ती नहीं करती है। छोटी मछली हमेशा शार्क के लिए चारा ही होती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि शार्क आपको जब बुला रही है तो आपको खाने के लिए बुला रही है, आपको खाना खाने के लिए नहीं बुला रही है। देयर इज अ डिफरेंस। आप उसका खाना बनने वाले हो, उसके साथ खाना नहीं खाने वाले हो। दे वुड नेवर शेयर प्रॉफिट्स विथ यू, बट दे विल मेक आउट प्रॉफिट आउट ऑफ यू। सो एज अ कॉमन मैन, सो वो कंपनी में कैसे देखें कि लाइक उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनिशिएटिव्स हैं कुछ, लाइक कैसे देखें वो? देखिए, पहले तो जब आप कोई भी कंपनी के साथ काम करते हो तो फेलो ट्रांसपोर्टर्स ऑल्सो आई से कि ऑलवेज कम अप विद अ क्लियर एग्रीमेंट। आपको कोई स्टार्टअप बहुत एक्साइटिंग लगता है, कोई आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, जैसे ही आप पेपर वर्क में आते हो उनके कमिटमेंट्स पूरे उल्टे हो जाते हैं। आपको मालूम है आज भी जितने स्टार्टअप्स है वो लोग राइटिंग में नहीं देते। जैसे मेरे पास कोई भी एग्रीगेटर आता है कि हमारे पोर्टल पे आइए, आपको रोज़ कट 100 ट्रक्स का बिजनेस मिलेगा। आई कैन शो यू द कोड्स। हाँ, जहाँ पे मुझे कोड भेजा गया है 100 ट्रक्स का बिजनेस आपके साथ करना है, वुड लाइक टू वर्क विद द कंपनी। लाइक प्लीज़ आ जाइए, वेलकम। लक्ष्मी जी आ रहे, आइए, वेलकम। ये रहा मेरा एग्रीमेंट कि पेमेंट विल बी ऑन टाइम। सर पेमेंट तो हम लोग देंगे तभी तो आपसे काम कर रहे हैं, आप लिख के दो, और पेमेंट नहीं देंगे तो उसका क्लॉज लिख के दो। वो क्लॉज हम लिख के नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देगा क्लॉज नहीं, पेमेंट देंगे वो लिख के देंगे, पर पेमेंट नहीं देंगे उसका क्लॉज नहीं। बिकॉज मैं सीधा लिखता हूँ, पेमेंट अगर जो आपने नहीं दिया 18% पेनल्टी, उसके सामने आपका मेरे को एक चेक दे के जाइए, ब्लैंक चेक, जिसके अंदर मैं आपको रेटिंग में एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि ये पेमेंट नहीं होने पे मैं इसको डिपॉजिट कर सकता हूँ। अगर जो आपका इंटेंशन है पेमेंट देने का तो आप क्यों नहीं रख सकते हो? या तो चलो मैं इसको ये बोलता हूँ कि काम करो, आप मेरे पास 5 लाख रुपए डिपॉजिट लेके जाओ। मेरी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं तो 33 ईयर्स इंडस्ट्री में हूँ, आप नए प्लेयर हो, आप मेरे पास डिपॉजिट रखो। आपके पास तो 5,000 करोड़ फंडिंग आई हुई है, बराबर है? आपको 5 लाख रुपए देने में क्या तकलीफ है? आपका कंसाइनमेंट का फ्रेट हो रहा है 100 ट्रक का, समझो 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रखो मेरे पास, 20% अमाउंट डिपॉजिट। बिकॉज फ्यूल मेरा है, ड्राइवर मेरा है, टोल मेरा है, टोल तो मुझे आज ही देना है, फ्यूल के पैसे तो आज ही देने हैं, आदमी को पगार तो आज ही देना है, भत्ता तो ड्राइवर को रोज़ का रोज़ देना पड़ता है, लाइट बिल भी चुकाना है मुझे, मोबाइल का बिल भी चुकाना है, तो आप मुझे एडवांस दीजिए ना। तो एडवांस में 100% ये स्टार्टअप फेल हो जाता है, बिकॉज आप उनसे रिटर्न में जो भी चीज़ मांगते हैं ना वो नहीं देंगे, और जब नहीं देते तो आप उनके साथ काम ही नहीं करना है। पर जब जो, जैसे मैं आपको चालक मालक कहा, जो छोटा आदमी है इसके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज का एक्सेस नहीं है, वो तो इसके चपेट में आ जाता है और वो लोग इसे काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग उनको समझाते हैं, काफ़ी सारे छोटे ट्रांसपोर्टर्स को मैं समझाता हूँ कि आप लोग ऐसे कोई चक्कर में मत जाओ, आप लोग ज़्यादा लालच में मत जाओ, वो आपको जो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं उनके चक्कर में मत जाओ। जा रहे हो तो आप एक एग्रीमेंट लिख के जाओ कि पेमेंट नहीं देने पे क्लॉज का क्या होगा, कितना परसेंटेज हमको पेनल्टी मिलेगा, उसके सामने हमारे पास क्या मिलेगा। और अगर जो ऐसा है तो इक्विटी दे दो इनको पेमेंट के सामने। आपने चलो इसको आप 15-20 लाख रुपए इसको नहीं दे पाए तो इक्विटी लिख के दे दो ना कि भाई ये कंपनी में आपको 15 लाख रुपए का आपका शेयर हम दे देते हैं, जब हमारा आईपीओ आएगा या नेक्स्ट इन्वेस्टर आएगा आप लेके जाना वो वैल्यू। वो आप एग्रीमेंट में क्यों नहीं लिख सकते? आपका इंटेंशन है पेमेंट करने का, तो मैंने तो आपको वही कहा कि पेमेंट नहीं होने पे आप मुझे क्या दोगे, तो वो क्लॉज क्यों कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकता है। सो ये जब ये सब चीज़ें, कोई मेरे पास आएगा, कोई वेंडर जब मेरे पास साथ काम करता है,
मुझे बोलेगा कि आप पेमेंट नहीं दोगे तो आप मेरे को लिख के दोगे, तो मैं उसको 25% लिख के दे सकता हूँ। मैं जब टायर खरीदता हूँ, हम लोग तो ऐसे क्रेडिट पे लेते नहीं है, सो हमारा बहुत क्लियर सिस्टम है कि इमीडिएट पेमेंट करो और सिस्टम को उसी तरह चलाओ। तो कोई आके मुझे बोलेगा कि 1 महीने का उधारी आपको दिया, आप लिख के दे दोगे 25% वरना पेनल्टी, मैं उसको लिख के दूंगा 30% पेनल्टी ले, बिकॉज आई नो माई ब्रांड, आई नो व्हाट इज़ माई एथिक्स, व्हाट इज़ माई प्रिंसिपल्स इन लाइफ टू वर्क। मेरे को मेरी कंपनी के प्रिंसिपल्स मालूम है, एथिक्स मालूम है, तो मेरे साथ कोई भी काम करेगा और कर रहे भी है लोग। क्यों हमारे साथ काम करे? वाई वी आर मेकिंग प्रॉफिट्स बिकॉज इज़ वेरी क्लैरिटी। हमें पता है कि हमारी कंपनी का फ्यूचर क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है और हमारे कोर वैल्यूज़ क्या है। ये स्टार्टअप्स के नहीं है, तो नहीं है। तो जब कॉमन मैन को उनके साथ काम करना है तो पेमेंट क्लॉज डालिए आप। आपके जो काफ़ी टाइम पे व्हीकल डिटेंशन होता है, व्हीकल डिटेंशन आप हंसोगे, एक गाड़ी की EMI होगी जो मोटा मोटी मैं नई गाड़ी के पकड़ूँ तो EMI पहुँचती है 65 से 70 हज़ार की EMI होती है। ड्राइवर हमारा मोटा मोटी जो भत्ता लेता है 1,000 रुपये पर ट्रिप का होता है और बड़ी गाड़ी का 1,500 रुपये आता है, विच ड्राइवर वी हैव टू गिव टू ड्राइवर। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, गाड़ी आइडल है हमारा, इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो मोटा मोटी एक दिन का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा फिक्स पकड़ के ही चलिए गाड़ी के ऊपर का, ट्रक के ऊपर का। अभी डिटेंशन कितना देते हैं आपको मालूम है? आई कैन शो यू थाउजेंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स, 500 to 1,000 रुपीज़। मतलब मैंने कोई एक्स एग्रीगेटर के लिए लोड किया गुड्स और उसने बोला कि आगे कंपनी में बहुत सारी ट्रकें लगी या कंपनी मेंटेनेंस में चली गई, आपकी गाड़ी 5 दिन रुका दो। ड्राइवर को कितना मिला? 2,500 रुपया। और नुकसान कितने का हुआ? 20,000 रुपये का। 2,500 और 20,000, ये लॉस तो कंपेयर ही नहीं कर पाते ड्राइवर्स को, मैथ्स ही नहीं पता है कि रियल गेम क्या है। तो ये क्लॉज नहीं डाल पाते। तो वही तो मैंने कहा कि वो लॉलीपॉप में लोग ऐसे घुस जाते हैं। अगर जो आपको टैक्सी चलानी है, आप किसी, वो भी एग्रीगेटर्स, इवन टैक्सी पीपल एग्रीगेटर्स, आप उनके साथ क्लॉज करो, मैं आपके लिए गाड़ी वैगनर खरीदने तैयार हूँ, आप मेरे को प्रॉमिस करो कि मुझे ये इंसेंटिव्स मेरा 1 साल तक चेंज नहीं होगा। मेरी गाड़ी की EMI 5 साल की है, 5 साल तक मेरा इंसेंटिव्स में चेंजेस नहीं होगा। आप लोग मेरे को 20 रुपये पर किलोमीटर प्रॉमिस कर रहे हो, आप मेरे को लिख के दो कि 5 साल तक आप इसको 6 रुपये 20 रुपये के नीचे नहीं करोगे। कौन सा एग्रीगेटर लिख के देता है मेरे को? बोलो, कोई लिख के नहीं देगा। या उनसे लिखा के दो कि आपके ऐप से मेरे को मेरा पेमेंट टाइम पे मिलेगा, कोई लिख के नहीं दे रहा है, फिर भी लोग जा रहे हैं, फिर भी लोग आज भी इनके लिए टैक्सियाँ चला रहे हैं, हमारे लोग उनके लिए ट्रकें चला रहे हैं। सब मंकी माइंड है हमारे यहाँ पे। एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, और एक तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया में लॉटरी इतनी ज़्यादा चलती है जबकि कमाता तो एक ही है। सेम वे है कि लाइक पीपल आर जस्ट रनिंग आफ्टर एन लॉटरी, और जो कभी लगने नहीं वाली है, और लाखों लोग इसमें पिट जाते हैं, ट्रक की EMI नहीं दे पाते, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ इमरजेंसी हो गया तो बेचारा लाइफ लॉन्ग के लिए वाइप आउट ही हो जाता है इंडस्ट्री से। क्योंकि एक एक्सीडेंट में ट्रक 2-3 महीना रुक गई, 2-5 लाख रुपए खर्चे हो गए ट्रक के पीछे, तो बंदे की जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। और तभी एग्रीगेटर सपोर्ट करता है क्या? ये पहचानता भी नहीं है कि इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है। एटलीस्ट वी एस ए ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट हेल्प ईच अदर, कि बंदे ने मेरे साथ 10 साल ट्रक चलाई है, चल भाई एक काम करे, 1 लाख रुपये तो रख ले। ये एग्रीगेटर्स करेगा क्या आपके लिए? वो जानता भी नहीं है, उसको ओनर को मालूम भी नहीं है कि कौन ड्राइवर है, कौन मैनेजर है, या कौन सा ट्रांसपोर्ट मेरे लिए ट्रक चला रहा है। जैसे अभी आपने बात करी लाइक 1 लाख रुपए हमारी तरफ से, तो आपके ऐसे इनिशिएटिव्स भी बहुत है, मैंने देखा है लाइक डांडिया नाइट्स एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स की बात करते हैं अगेन। सो हमारे यहाँ पे एक तो ट्रक ड्राइवर्स को बहुत सुपीरियरिटी में माना जाता है। सो हमारे पे बेटी गौरव सम्मान करके हम लोग ने एक रखा हुआ है। सो जो भी ड्राइवर या एनीवन इन द कंपनी, इज़ फॉर द स्टाफ, इज़ फॉर द मैनेजर्स, फॉर एवरीवन इन द कंपनी, जिसकी भी बेटी की शादी हो रही है, वहाँ पे हम लोग उसको 21,000 रुपये देते हैं और उनको वेडिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, तो उसके अंदर वी आर रियली लाइक प्रमोटिंग एंड के सपोर्ट अ गर्ल चाइल्ड। और लड़की होना एक गर्व की बात है। मेरी खुद की भी डॉटर है, और डॉटर, सो यू वुड सी I'm like super proud to be a father of a daughter, like extremely proud I would say। मतलब ऐसा नहीं कि बेटे से कोई तकलीफें देते होगा तो उससे कोई तकलीफ ना हो, nothing like that, but yeah, I have this privilege to be a father of a daughter। So आपने हमारी ट्रकों पे भी बहुत बड़े में हमने वो आर्ट कराया हो जहाँ पे लिखा हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे ट्रक ड्राइवर्स को हम लोग उनके किड्स के एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, और बेटी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उनको फर्दर एजुकेशन के लिए भी विल स्पॉन्सर दैट। सो हम हमारे ड्राइवर्स को खुद ही समझाते कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। काफ़ी टाइम क्या होता है कि बेटी को लेके उनका मेंटालिटी होता है कि
ये तो शादी करके चले जाएगी, तो इसके पीछे पैसा लगाना नुकसान है. मतलब कुछ लोग ऐसा मेंटालिटी होता है कि वो लोग बोलते हैं की ह्यांना कशाला आपलं शिकू, यांचे लग्न होणार मग ते पडून जाणार, मतलब तो फिर ससुराल में चले जाएगी, उनका ड्यूटी बनेगा, तो मैं पैसे क्यों इसके पढ़ाई के पीछे लगाऊं. तो उनको हम लोग समझाते हैं कि वो जो भी घर में जाएगी पढ़ी लिखी होगी ना, तो घर में ये जो तेरा थॉट प्रोसेस है ना वो कभी नहीं आएगा कि क्यों सिखाऊं. जब बेटी सीखेगी, बिकॉज आज फैमिली चलाते घर की जो लेडी है वही चलाती है, वो एजुकेटेड रहेगी तो उसके बच्चे ऑटोमेटिकली वो नॉलेज के साथ आएंगे, उन्हें सिखाएगी, शी विल बी एबल टू ग्रूम देम बेटर. तो इसके लिए हमारा बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ बेटियों को लेके है कि बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, उनका एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, और उसी को लेके हम काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स करते रहते हैं. फिर एक और इनिशिएटिव हम लोग करते हैं डांडिया. सो जैसे कि हमारा बहुत क्लियर प्रिंसिपल है कि हम जो भी कमाते हैं सोसाइटी से कमाते हैं, लोगों से कमाते हैं, इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर मॉरल ड्यूटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी. सो हम लोग हर साल की तरह, हम लोग को ये साल 16 साल हुए, तो 16 साल से हम लोग डांडिया ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर आई वुड से गॉड्स फेवरेट, लाइक द पीपल हु आर मेंटली चैलेंज्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, बाद में ऑर्फन्स हो गए, ओल्ड एज हो गए. सो करीबन 700-800 किड्स हमारे यहाँ पे आते हैं. ओल्ड एज से भी आई वुड से 100-150 लोग आते हैं ओल्ड एज से, ऑर्फन्स हो गए. तो वो लोग को हम लोग बुला के वी हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ डांडिया, जहाँ पे ऑल दिस पीपल आर ट्रेडिशनली ड्रेस्ड, और यहाँ पे चोपड़ा लॉन्च में करते हैं. सो आपने देखा होगा कि बाकी सब डांडिया में आप भी डांडिया खेलने जाते हो, तो वहाँ पे नॉर्मल पब्लिक जो होती है, हमारे इस नॉर्मल पब्लिक, वो लोग डांडिया खेल रहे हैं. आपने कभी भी किसी को भी जो मेंटली चैलेंज है या फिज़िकली डिसेबल है, वो लोग को किसको भी आपने डांडिया खेलते हुए नहीं देखा होगा, या उसको कभी इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है. हमारे डांडिया में आप देखेंगे ना, ये लोग खेलते हैं, एंड वी कॉल प्रोफेशनल डांसर्स टू प्रोफेशनल डांसिंग ग्रुप ऑल्सो वी कॉल देम, जो इनके साथ डांस करके इनको सिखाते हैं, इनके साथ प्ले करेंगे. सो दे आर सो वेल ड्रेस्ड, मतलब कि एंड दे आर सो एक्साइटेड. मतलब वो आप उनको जब ऐसे डांडिया खेलते हुए देखो, ऑर्फन्स को आप देखो, छोटे छोटे बच्चे आते हैं. सो ये साल एक छोटी सी डॉटर आई थी, शी वॉज 3 months ओल्ड. मतलब समबड़ी एक कचरे के डब्बे में उनको नासिक में मिला, एक कोई तालाब के यहाँ पे मिल गई, हमारे यहाँ पे जो घाट है यहाँ पे गोदावरी घाट से तालाब पे एक छोटी सी बेटी मिली, उसको लेके आ गए. एंड दे वर लाइक द किड्स वर लाइक 2 year old 3 year old, एंड जो काफ़ी सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं उनके बच्चे होते हैं. एंड यू शुड सी द वे दे डांस, बिकॉज एंड आप देखोगे ये लोग मजाक कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग डांडिया, दे आर डांसिंग. और सो इट्स अ फ्री इन्वाइट, वी इन्वाइट फुल नासिक, फ्री इन्विटेशन होता है. और वो लोग सारे के सारे जो नॉर्मल पब्लिक है, वो लोग ये लोग को देख रहे हैं, वो लोग ये लोग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं इन द डांस, और वो लोग इनके साथ जुड़ते हैं. सो जहाँ पे इनको बहुत इंपॉर्टेंस फील होता है, बहुत उनको ये लगता है कि हम भी कुछ वैल्यू है, हमारा भी सोसाइटी में कुछ वैल्यू है. सो फिर उनको स्टेज पे बुलाते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस रखते हैं. तो इस तरीके का जो सुकून मिलता है, सो वी डू इट फॉर द सुकून, लाइक कि वो अलग हमारे आत्मा को सुकून मिलता है, उसके लिए हम लोग ये करते हैं. एंड हाँ, जैसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हम लोग लेते रहते हैं. एंड आई वुड लाइक यू गाइज टू ऑल्सो जॉइन अस, इन्वाइट, लाइक आई एम इन्वाइटिंग यू अभी से ही कि हमारे इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कीजिए, आपको एक अलग सुकून मिलेगा. बिकॉज वी डोंट टेक मनी फ्रॉम एनी वन, वी डोंट टेक एनी चार्जेस, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री इन्वाइट फॉर होल नासिक. फिर उसके बाद खाना भी होता है, हम लोग खाना भी रखते हैं. तो उनके लिए आप उनको आइसक्रीम खाते हुए देखो खाली, मतलब कि आपको ऐसा आँखों में एक बार आंसू आ जाएगा. मतलब द वे, मतलब जैसे उनके हाथ में स्कूप दिया, तो स्कूप विद इन 10 सेकेंड उसको ख़त्म करना है. मतलब कि बिकॉज उनको ये सब इतना नहीं मिलता है, दे डोंट हैव एक्सेस टू द फाइनेंस इतना अच्छा, उनको जो भी आश्रम में जो भी मिलता होगा वही मिलता है. सो दैट एक्साइटमेंट, दैट लव, मतलब उसके लिए वो आइसक्रीम खाना इतना बड़ा प्लेजर है कि शायद उसको दुनिया की सारी चीज़ मिल गई है. उसके लिए डांस करना ऑन द बॉलीवुड सॉन्ग्स, ऑन द गुजराती सॉन्ग्स, इतना बड़ा प्लेजर है कि उसको ऐसा लगता है कि आई एम अ हीरो, everyone is looking at me, everyone is praising me, people are cheering for me. That importance, that we try to give them that importance and make them feel that they are also wanted in the society, they are also acknowledged in the society. And that's what the whole objective is after, like keeping this dandiya. And other initiatives too, जैसे education को लेके हो गया, ट्रक ड्राइवर्स को लेके हो गया. हम लोग मुंबई पुलिस के लिए भी काफ़ी कैंप करते हैं, नासिक आरटीओ के लिए हमने किया हुआ है, हेल्थ चेकअप रखे हुए हैं. सो वी कीप डूइंग सच प्रैक्टिसेस फॉर द सोसाइटी. वी आर ट्राइंग टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी, बिकॉज उन्हीं से कमा रहे, उन्हीं से आ रहा है, उन्हीं से रिस्पेक्ट भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, बिजनेस भी आ रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है ट्रस्ट ऑन द ब्रांड.
So the society is trusting on us. So it's our moral duty to give back to the society. Great, sir. So coming back to the last question we have for you today. So abhi, what is the future you have in mind for SNGT? Like if we talk about 5 years down the line, where is the company heading towards? If the users want to know. So 5 years down the line, right now we are on the expansion mode, and I would say SNGT will always be on the expansion mode. अगर जो हमारा credo में is very well defined कि हमारा बहुत clear goal है कि what we want to do, and we want to be expanded in a pan India in all the states, even the union territories. We have a plan for that too. And उसके बाद हमारा जो प्लानिंग है कि किस तरीके से हमारा टीम एक्सपांड करना है, हमारे सिस्टम उसके लिए हमने बनाए हुए. सो वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रैटेजी शीट कि एवरी ईयर किस तरीके से कितना परसेंटेज जंप होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे हमारा जोग्राफिकल प्रेजेंस होना चाहिए. सो 5 years डाउन द लाइन वी हैव ऑलरेडी टारगेट. हमने ये साल हम लोग दिल्ली में आ गए, राजस्थान में आ गए, एंड MP में वी आर कमिंग नाउ. सो 5 years down the line, the growth, what I can only forecast right now, because I can't take 100% guarantee, but हमारे हिसाब से SNGT would be at least 5 times of what it is right now. And every year we are growing by 30%, 30. So हमें तो 5 times grow करना है, and by that time हमारा IPO भी आ जाएगा by God's grace again, like so if it's God's will, and same team same passion से काम करेगी तो definitely will come up with the IPO. And IPO जब भी आएगा जब हमारा काफ़ी strong presence हो जाएगा, and we'll have presence at least in 11 states. 11 स्टेट में हमारी presence हो जाएगी, हमारी 250+ branches हो जाएगी, and will cross at least 700 to 800 trucks. तो उसके बाद will come up, idea है, preparation है, then will come with an IPO. But we want to have a proper geographical locations, proper service, because हमें वो कुछ नहीं करना है. ना ओवर ट्रेडिंग में हम बिलीव करते हैं, ना हम कोई स्टार्टअप की तरह हमारा कोई अनइंटेंशन नहीं है. हमारा इंटेंशन बहुत क्लियर है, टू सर्व पीपल, टू सर्व एंड मेक द ट्रांसपोर्टेशन इस इंडस्ट्री को एकदम स्मूथ कर देना है. एक एक्सपीरियंस जो आपका होता है कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन को लेके, आज भी आप किसी भी बंदे से या कोई भी इंडस्ट्री से आप किसी कोई लॉजिस्टिक्स मैनेजर से पूछेंगे तो बोलेगा यार ट्रांसपोर्ट बड़ा पेन है, ट्रांसपोर्टर से डील करना बड़ा पेन है. ट्रांसपोर्ट जैसे ही उसका सब्जेक्ट आता है तो वो थोड़ा उनके लिए नाराज़गी वाला हो जाता है. सो आवर ऑब्जेक्ट इज़ टू मेक इट वेरी स्मूथ, वेरी डिलाइट सर्विस, जहाँ पे किसी को भी ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई भी चैलेंजेस ना आए. एंड वही विजन को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और राइट टाइम राइट पीपल, एंड बाकी तो रब की मर्जी है. Thank you for coming to our podcast. Thank you for coming on your perspective, sir. Thank you so